Start. Good evening, friends. I welcome all to this webinar. Today's speaker, Aanchal Kapoor Madam, Kiran Saur Sir, President, our TPA President in absentia, Haribhai Dudani, President, Tax Friends, seniors in the profession and friends. It's given me immense pleasure to welcome you to all to this webinar, very important webinar on 360-degree analysis of recent changes in GST and its impact. Before Aanchal Kapoor Madam starts her presentation, I request our Vice President TPA, Sri Arvind Jain, to say a few words about TPA. Over to you, Arvind bhai. आप अनम्यूट कर लो. Yeah, Arvind, आप अनम्यूट हो. Yeah. Good evening, friends. Myself, Arvind Jain, Vice President of Tax Practitioner Association, Thane. It is with a great pleasure and pride that I take this opportunity to introduce the Thane Tax Practitioner Association, in short form known as a TPA, at today's seminar. Founded with the vision of bringing together professionals in the field of taxation, TPA has grown into the respected organization comprising of more than 300 members of chartered accountant, tax consultant, advocates, and other tax professionals. Our mission is to promote professionals' excellence, ethical practice, and continuous learning in the domain of taxation. Over the year, TPA has been actively involved in conducting seminars, workshops, study circles, and awareness programs, providing a dynamic platform for knowledge sharing and networking. We also engage with the various government authorities and regulatory bodies to represent the collective voice of our professionals. In addition to the professional development, TPA regularly and organizing outreach and support initiative for the benefit of larger society. Today's seminar is yet another step in our journey to empower practitioners, stay updated with the latest legal tax reforms, and enhance our collective capacity to serve clients and society with the integrity and expertise. We thank all our members, speakers, and participants for their continuing support. Together, let us make this seminar meaningful, insightful, and impactful. I also thank today's speaker, Aanchal Kapoor, for giving us valuable time for today's seminar. Thank you very much. Over to you, Arvind bhai. Now I request Haribhai to say a few words about the tax friends. Thank you, Arvind. It is my privilege to welcome you all to this insightful session on 360-degree analysis of recent amendment and its impact, where we aim to deepen our understanding of taxation laws and best practices. We, as a tax friends, honored to host such important discussion along with the TPA that bring together experts and professionals and learners too eager to navigate the complexity of recent amendment and its impact. We have distinguished speaker CA Aanchal Kapoor on the subject matter to throw light on the key topics. I encourage all of you to engage actively, ask questions, and take full advantage of this opportunity. For tax friend, I would like to update you that tax friends is almost 48 years. Now we'll be completing 50 years, maybe in a couple of years. Tax friend is doing the same thing which TPA is doing for the professional brothers and colleagues. In tax friends, we have stalwarts like KK Ramani ji, JD Nankani, Vikram Nankani, Gobind Tekchandani, DM Harish, and none other than our Vijay Kevalamani, who is a part of tax friends past presidents. They have taken the tax friends to the newer heights, and day by day it's growing. Especially after the Vijay Kevalamani joined the organization, he has made the organization, this platform, to the very, I would say rather it is more promising than before. He has admitted more than, say, 50% of the strength as of now as a member introduced in the tax friends. So with this, I thank you all for attending this seminar, and over to you, Arvind. Unmute karo. Aanchal Kapoor Madam. Harish bhai, please introduce today's speaker. Thank you, Arvind ji. At the outset, I am really very thankful to Tax Friends Association and TPA for giving me an opportunity today to introduce our learned eminent speaker, Aanchal Kapoor ji. Actually, she doesn't need any introduction, but it's just a mere formality that I have to read her biodata
third time now in this webinar. Chalo, let's start with a profile. CA Aanchal Kapoor has made exemplary contribution to the profession and industry as national speaker on GST. Chartered accountant. She is a chartered accountant and law graduate in taxation practice for more than a decade, that is 14 years, with privilege of educating through over 1,000 GST deliberations across India to professionals, industry and trade at large. She has prerogative of addressing an august gathering of 2,200 plus participants at one point. She is renowned faculty at National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics. We call it as NACIN also. It is a GST officers training cell. She is a renowned faculty at Master Trainer Punjab SGST and CGST and approved faculty of Institute of Chartered Accountants of India and author to ICAI's various GST publications and other allied journals. She has excellent academic career with third rank all over India in CAPEI, second rank in Northern India in CAPEI, and gold medalist in BCom. As an additional qualification, she has also completed forensic audits and fraud detection course by ICAI. Apart from having splendid academic background, she has been in the field of indirect taxes and is well acquainted in the field of GST, including departmental and appellate work. She has been the winner of AIFTP Presidential Award for the year 22-23 and 21-22, awarded by NIRC ICAI for her exemplary contribution to profession, presented with award of appreciation by the Intellectual Forum Amritsar, felicitated by NIRC and EIRC as eminent speaker on GST. She has been actively involved in social activities at various NGOs. She is a member of FICCI Flow Amritsar chapter, working for the well-being of needy persons at old age homes, Pingalwara, etc. Her memberships and awards, it's a very big list. So she is a co-opted member of National Indirect Tax Committee of ICAI 25-26, convener, All India Federation of Tax Professional, National Indirect Tax GST Committee 2025. She is coordinator of All India Federation of Tax Professional Indirect Tax GST Committee, Northern Zone 2024, and National Indirect Tax GST Committee 2023. She is member of AIFTP National Virtual Tech Web Committee 21-22. She is active member of ITRAA Independent Tax Research and Analysis Association. She is Joint Secretary AIFTP Northern Zone 2021, esteemed member of Amritsar branch of NIRC, renowned faculty of ICAI and NACIN GST Officers Training, winner of AIFTP Presidential Award for the year 21-22, felicitated by NIRC and EIRC branch as an eminent speaker on innumerable discussions and seminars. She has been awarded by AIFTP as the Best Upcoming Speaker 21-22, awarded by NIRC branch for her exemplary contribution to the profession. She is presented with the award of appreciation by the Intellectual Forum Amritsar. Her scholastic achievement: she is a gold medalist in BCom. She is second merit ranking in BCom 2 in Guru Nanak Dev University, third merit ranking in BCom 3 in GNDU, awarded Best Paper on Mathematics Award by ICAI, seventh merit ranking in 12th in Punjab, rank holder at various levels of CA certificate course on concurrent audit banks. CA Aanchal Kapoor is prominent writer and author to numerous articles on GST, published from time to time in several magazines like AIFTP Journals, VPCA, Kolkata. She is regular writer to various newspaper dailies. She is also regular writer at various online discussions portals such as Taxman, Tax Management India, and Tax Guru. She is co-author of various ICAI publications. CA Aanchal has also CA Aanchal has been a frequent speaker in various seminars and webinars. She has the honor of making deliberation on a virtual platform of Lions Club of Mumbai, Walkeshwar, Lions Club of Mumbai Corporate, Foundation for Skill Development, Maharashtra, Navjivan Center for Development. She has delivered over 1,000 seminar and webinars on GST to ICAI members and industry across the nation, deliberated the seminars, conducted workshops and open discussions in various educational institutions all over Northern India. She is well known for her practical and illustrative approach of deliberations. Her experience provides her with an upper hand to understand and elucidate her knowledge of the subject and helps enlighten the members and students. Her method of elucidating is appreciated fair and wide by all the members and associates. She has also been a part of several budget discussions held at branches of ICAI. Aanchal is regular participant in various other events held by NIRC and various other regional councils of ICAI. With this, आंचल जी और कुछ?
Thank you. So I hope I have not did any mistakes, and I have fared very well in reading your profile. Thank you everybody. With this, I present before everyone our learned eminent speaker, CA Aanchal Kapoor ji. Thank you so Thank much. you, Harish. Thank you, Harish bhai. Now I request our speaker to take over the charge. But before she take over, madam, will you have question answer we will take at end or intermediate will be done? So most likely at the end, but the questions which will come in chat box, I will try to address linked to the topic simultaneously. Okay. Anyhow, nobody will be able to unmute and speak. So Arvind bhai, let them put it on the chat and let her answer. Otherwise, at the end. Yeah. Okay. So if any question, you please put in the Q&A chat box. We'll take, if time permit, we'll take at the end of the. Thank you, everyone. Let us Thank you, also Aanchal. let us also welcome our TPA President Kiran bhai, who is He is in the traffic. Okay. he has joined. He has joined. Okay. Over to you, ma'am. Thank you so much, Arvind sir. And I am very thankful to Tax Practitioner Association Thane and Tax Friends Association Mumbai for giving me this opportunity to interact on the elite platforms. Thank you, Bharat Bhai. After such a tussle, we could fix the date, which is neither falling during the festive season or otherwise also. And thank you, Vijay sir. And how can I forget Harish Chugani sir for reading the detailed profile? I will send the shorter one next time for sure. Right. And a very good evening to all the participants who have joined us today. Friends, I want to really interact. I will be sharing up the presentation, will be giving up the pointers or what are the learnings I could gather. But at the same time, I want to touch upon the topics. Okay, what is actually the impact of this 56th council meeting? Because this is what the topic has been named 360-degree analysis of this 56th council meeting. At the outset, I would like to mention the 56th council meeting on 15th August, the base was kept by the Honorable Prime Minister of India, which was further taken on mid date, 22nd September was selected for implementation of changes, जिसके कई impacts हमारे सामने आएंगे कि ये 22nd date लेने से भी क्या-क्या impact जो है that will be there. So before we proceed further, let me share the PPT. And I request all of you to be interactive in the chat box so that we can mutually learn from each other. Let me make this slideshow. Okay. Slideshow, yes. I hope the PPT is visible, sir. Yeah, it is visible. All right. चलिए सो अगर मैं बात करूं 360 डिग्री एनालिसिस की, रेट चेंजेस हुए हैं, बट रेट चेंजेस से पहले जब मैं नोटिफिकेशंस पढ़ूंगी, सो उससे पहले आई वुड लाइक टू टच अपॉन कि उसके इंपैक्ट्स क्या-क्या आए हैं, राइट? Sir, is this visible on full screen or it is visible on part and next slide is visible? Because to me, two screens are showing up. Is it Actually, Next it is slide visible is in also parts. visible. sorry? Part and next slide. Part and next slide. Okay. So Yeah, now now it's now fine. done. Now done. Done. Now done. All right. So if I talk about the rate changes, anybody who can write in the chat box, let me open the chat box along with it. Okay. How many tax slabs are there? Hi, Hari Bhai. How many tax slabs are there? So, it is going to be a rapid fire. You need to be really quick. For next around 90 minutes we are together, or say 70 minutes we are together. So quickly, how many tax slabs are there? Many people say the tax slabs have decreased. Tax slabs have decreased. पहले अगर मैं गुड्स की बात करूं, पहले भी 7 थी, अब भी 7 है. बट क्या-क्या चेंजेस आए? अरविंद जी वही बताने जा रही हूं. 7 slabs are there for the goods, right? अच्छा, is 12% slab totally done away with? क्या 12% का slab totally done away हो गया है?
Answer is no. Still, there is one product which is taxable at the rate of 12%. And what that product is? Bricks. So जो bricks है उनका आज भी एक रेट है 12%, बट वो एक स्पेशल नोटिफिकेशन के थ्रू है. सो अगर मैं रेट नोटिफिकेशंस की बात करूं तो सबसे पहले सेंट्रल टैक्स जो मेजर चेंज आया है, हम पहले कहते थे कि जो नोटिफिकेशन है गुड्स की वो 1/2017 है, which is dated June 2017, and उनकी exemption 2/17 में है, which is again dated June 2017. Now see the major shift. रेट्स में इतना शफल था गुड्स के रेट में कि ये दोनों पुरानी नोटिफिकेशंस ही खत्म कर दी गई. 8/17 and 2/2017 both have been superseded. So अगर अब आपको गुड्स का रेट पढ़ना है, you do not have to go to 1/17 or 2/17. So both these notifications stand superseded. 1/17 has been taken up by 9/25 CT rate, and the notification 2/17 has been superseded by 10/25 CT rate. So अब आपको पुरानी notifications पे नहीं जाना है. For goods, the old notification stands superseded, and this is what our next slide has to tell us. ये notification पहले थी. If you can see in this notification, there have been 7 slabs: 2.5, 6%, 9%, 14, 1.5, 0.125, and 0.75%. Now, this notification has been substituted by 9/2025, and again we have 7 slabs only. But what is the difference? No 6% slab here. 6% is not there. Instead of 6%, now it is 40%, yani 20% slab has now been added. So 2.5, 9% and 20%, that is 40% slab has been added. Rest remains same. 14% slab is still being continued because of the tobacco and tobacco related products. हमें ये कहाँ काम आती है? जब हमें अपनी पार्टी को गुड्स एंड सर्विसेज के रेट्स बताने हैं. सो व्हिच नोटिफिकेशन नाउ वी नीड टू चेक? वी नीड नॉट टू गो टू द ओल्ड नोटिफिकेशंस एट ऑल बिकॉज दीज आर नॉट अमेंडेड. बट सर्विसेज में ऐसा क्राइटेरिया नहीं है. सर्विसेज की पुरानी नोटिफिकेशन 11/17 और 12/17 थी. रेट and its exemption, those are still continued and have been amended. 11/17 has been amended by 15/25 and 12/17 has been amended by 16/25. So services may same thing is being continued, but goods may the things have been, the notifications have been changed. So now you see you have these various schedules. In 14% is a demerit notification. For the 14% goods as for पान मसाला etc. गवर्नमेंट ने सिर्फ ये प्रोडक्ट्स है जिनके ऊपर सेस अभी भी कंटिन्यू किया है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है हमारे डेट हैं जो हमने कोरोना पीरियड में लिए थे टिल द टाइम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, जब तक वो डेट रीपे नहीं होते हैं, पान मसाला, टबैको, सिगरेट, सिन गुड्स के ऊपर वो 14% का रेट यानी 28% का रेट कंटिन्यू करेंगे और सेस कंटिन्यू करेंगे. अदरवाइज कार्स एंड बेवरेजेस एटसेट्रा, कोल एटसेट्रा पे जितना सेस था वो खत्म कर दिया गया. Right, so 14% rate is only meant for such goods. 20%, that is 40% rate is meant for the luxury and sin goods. So let's see how these goes. 2/17, the exemption notification of goods is also done away, and the new notification is 10/2025 that has taken place, and these are the various rates. 172 items have been kept under exemption for the goods. Now मूविंग अहेड, अगर मैं बात करूं 11/2025 की, फ्रेंड्स मैं नोटिफिकेशन के थ्रू नहीं चलूंगी. माय ओनली पर्पस वाज टू गिव एन आइडिया. कई गुड्स ऐसी हैं जिनके जैसे या कई सर्विसेज ऐसी हैं जो पहले 12% पे थी,
अब वो 18% पे हो गए हैं, सो रेट हायर हो गए हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो पहले 12% पे थे एंड दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू 5%, नियर अबाउट 399, 400 आइटम्स के अराउंड, 391, दैट इज अराउंड 400 आइटम्स गुड्स की जो है उनके रेट्स रिवाइज किए गए हैं। Now, if I talk about rate revisions, what comes is handicraft goods की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले handicraft goods के जो रेट है वो रिड्यूस हुए हैं। जो पहले रेट अराउंड 12% था, that has now been reduced to 5%. So these are certain products that have been given benefit. Now let me go on one basis, and this is the notification. आपने देखा होगा schedule में कोई भी 6% का रेट अब नहीं था। 7 थे पहले, 7 है आज, 12% हटा दिया गया है और 40% इन किया गया है। However, for the bricks, there has been a specific notification 14/2025, by virtue of which 12% rate has been continued, and the government has also given an FAQ on the same कि हमने आपको पहले एक स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम दी थी और the bricks except the sand line bricks वो same way से चलेगी, 6% without ITC and 12% with ITC. And let me tell you, ये composition scheme भी नहीं है, इसमें एक स्पेशल रेट स्कीम है जिसमें कि आप सामने वाले से टैक्स रिकवर भी कर सकते हैं। सो आई हैव ऑलरेडी आल्सो गिवन द स्नैपशॉट ऑफ दैट नोटिफिकेशन 2/2022। सो ये तो बात थी कुछ उन चीजों की जैसे जो गुड्स में आई, particularly a few I have touched. 15/2025 हमारी जो सर्विसेज के रेट चेंज हुए हैं। अगर मैं स्लाइटली टच करूं तो पहले जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट थे, जिनमें गवर्नमेंट को स्पेशल 12% के रेट्स अवेलेबल थे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, उन सब के रेट 12% से हायर होके 18% पर चले गए हैं। So you can see on your screen, the old rate was 6%, and now the revised rates for even the central government services, state government services, or works contract, etc., have risen to 18%. Now comes the first sector which I am going to touch upon in the services. और इसी सेक्टर के साथ मैं बहुत सारे इम्पैक्ट डिस्कस करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस। Entry of hotel accommodation is right in front of you. 7500 से कम का अगर रूम है तो उसका पुराना रेट 6% था, यानी 12%। नया रेट 5% हो गया है। कंडीशन लगा दी गई है, आईटीसी नहीं मिलेगा। So condition has been कि without ITC, provided that the credit of ITC charged on goods and services used in supplying the service has not been taken. My first question to you is there any rack rate concept for accommodation? क्या कोई रैक रेट यानी जो एक फिक्स्ड रेट डिस्प्ले रेट होता है होटल्स में जब आप जाते हो, क्या? अच्छा, you have to answer, हाँ, yes or no. At least I should also get that whether I am discussing with you or we are learning from each other or how come. अच्छा बताइए, is there any concept of rack rate in this entry or for GST purpose? The answer is no. Absolutely, Arvindji. Answer is no. Now the concept of the rack rate पहले ही एबॉलिश हो चुका था और वो एप्लीकेबल नहीं है। यानी ये जो 7500 की वैल्यू मैंने देखनी है, दिस इज नॉट द फिक्स्ड रेट, दिस इज द टीवी, व्हाट वी कॉल इट एज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। आप कमरा कितने का दे रहे हैं? आप उसको 7500 से कम का दे रहे हैं, क्या आप उसको 7500 से ज्यादा का दे रहे हैं, या अप टू 7500 दे रहे हैं? अगर तो आप अप टू 7500 दे रहे हैं तो आपको 5% विदाउट आईटीसी का रेट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज दिस रेट ऑप्शनल? अब 6% तो रहा नहीं, 18% विद आईटीसी और 5% विदाउट आईटीसी में क्या होटल स्विच इन और स्विच आउट कर सकता है क्विकली? अच्छा, अरविंद जी के अलावा और कोई सुन रहा है? Oh, thank God, Mr. Bhatia, you let me know that you are also there. Okay, answer is no. Absolutely no.
These are the mandatory rates, right, Lukas? Absolutely. So 5% without ITC is a mandatory rate. कहाँ लिखा है? अभी दिखाती हूँ, next में ही लिखा है, right, विजय जी? Now my next question comes. आपने कहा 2.5%, 5% without ITC का रेट लगेगा. Here it is. Now you see explanation में they have added for the removal of doubts. Now this entry number 1. What is entry number 1? This is entry number 7, clause 1. By way of explanation, they have inserted which is a mandatory rate and shall not be levied at the rate specified under this entry. आप 18% का रेट नहीं ले सकते हो, आपको यहाँ पर 5% का रेट मैंडेटरी है. So it is already the part of explanation which is given under the clause 776, which says 18% rate. So it covers other than 1 to 5 above, and for one entry number it is a mandatory rate. From 1 to 5 entry number it is a mandatory rate. Now 12% with ITC से rate हो गया 5% without ITC. Okay, my next question comes is, क्या इसके ऊपर अब होटल है, होटल के पास कैपिटल एसेट्स पड़े हुए हैं, पुराने पड़े हुए हैं. प्लीज बी विजिलेंट एज टू दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज इट हैज वाइडर इम्प्लीकेशन. होटल के पास फर्नीचर पड़ा है, एसीज पड़े हैं, एंड होटल्स के पास और भी ये कैपिटल एसेट परचेज करते हैं. माय फर्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं बात करती हूं रूल 42-43 henceforth. क्या मेरे ऊपर रूल 42-43 लगेगा? अच्छा, पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए. इज इट एन एग्जेम्प्ट सप्लाई? यस और नो? 5% विदाउट आईटीसी, इज इट एन एग्जेम्प्ट सप्लाई? यस और नो? डोंट वरी, योर क्वेश्चन आई विल आंसर. 5% से 7500 से ऊपर का रूम होगा तो क्या होगा? You all said no. Absolutely, this is not an exempt supply. क्यों? अरे एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं है, रेट तो 5% दिया है, किसी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में भी नहीं है, सिर्फ क्या कंडीशन लगा दी? विदाउट आईटीसी. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 याद करिए. इफ योर गुड्स आर यूज्ड फॉर partly for taxable supplies, partly for exempt supplies, or on then the rule 42-43 becomes applicable. Now my next question to you, you all said this is not an exempt supply. Then this is not an exempt supply. Whether rule 42-43 will be applicable? अब वो 42-43 applicable कैसे होगा? अभी आप में से किसी एक ने क्वेश्चन पूछा था, अगर मेरा रूम 7500 से ऊपर है तो मैं अदर देन 1 to 5 में फॉल करती हूं और मेरा टैक्स का रेट 18% है विद आईटीसी. अब एक होटल है जो कुछ रूम 7500 से कम दे रहा है और कुछ रूम 7500 से ज्यादा के दे रहे हैं. सो माय क्वेश्चन कम्स इज वेदर द रूल 42-43 becomes applicable, yes or no? अच्छा, याद रखना, यू ऑल सेड इट इज नॉट एन एग्जेम्प्ट सप्लाई. अरविंद जी, अभी मैं पुराने कैपिटल एसेट्स पे तो गई ही नहीं. आई एम नॉट देयर ऑन ओल्ड कैपिटल एसेट्स. आई विल गो फॉर दैट. अभी तो मैं ये बात कर रही हूँ henceforth क्या मेरे ऊपर रूल 42-43 लगेगा? पहला केस, जहां मेरे सारे रूम 7500 से कम है, सारे रूम 7500 से बराबर या कम है. सेकेंड केस, अगर मेरे सारे रूम कोई 7500 से ज्यादा है, कोई इक्विवेलेंट है और कोई कम है. आपने बोला यस. व्हाई? यू नो, देयर इज एन एक्सप्लेनेशन इंसर्टेड इन द हॉस्पिटैलिटी. लेट मी शो यू दैट एक्सप्लेनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दैट एक्सप्लेनेशन इज दिस. एक्सप्लेनेशन नंबर 4. फ्रेंड्स, आप सबने कहा कि भाई 17(2) ने दिस इज नॉट एन एग्जेम्प्ट सप्लाई. जब ये 5% विदाउट आईटीसी एग्जेम्प्ट सप्लाई था ही नहीं, तो मेरे ऊपर तो रूल 42-43 लगता ही नहीं था, क्योंकि वो किस पे लगता है?
एग्जाम सप्लाई पे लगता है। प्लीज बी विद मी, हाँ, क्योंकि वो किस पे लगता है, वो तो एग्जाम सप्लाई पे लगता है। गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली एक्सप्लेनेशन रोमन 4 इंसर्ट की, और जहां जहां, चाहे वो जिम्स हो, चाहे वो आपके ब्यूटी पार्लर्स हो, चाहे वो आपके होटल्स हैं जो 7500 से कम है, जहां जहां भी ये डाली गई कंडीशन रेट विदाउट आईटीसी, उसको साथ में डाला, एक्सप्लेनेशन नंबर 4 लगेगी। मींस द गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ डीमिंग फिक्शन कि वैसे तो ये एग्जाम सप्लाई नहीं है, क्यों, इसका रेट है 5% विदाउट आईटीसी, लेकिन हम इसे एग्जाम सप्लाई मानेंगे। लेट्स रीड दिस टुगेदर। Whenever a rate has been prescribed in this notification, subject to the condition that credit of ITC on goods or services used in supplying such service has not been taken, बोलते जहां जहां हमने कंडीशन लगाई है कि क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन सप्लाई नहीं लेना है, इट शेल मीन दैट क्रेडिट ऑफ आईटीसी चार्ज ऑन गुड्स और सर्विस यूज्ड एक्सक्लूसिवली, यानी 7500 तक का कमरा है, exclusively in supplying such service has not been taken. इसका मतलब henceforth आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। सेकेंड, ये क्यों डालनी पड़ी, क्योंकि ये एग्जाम सप्लाई नहीं थी, और वहां जो प्रोविजन थे वो तो एग्जाम सप्लाई के लिए थे। सो बाय वर्च्यू ऑफ डीमिंग फिक्शन दे पुट एन एक्सप्लेनेशन आईवी कि जहां जहां हमने कहा है विदाउट आईटीसी, वहां वहां आपको क्रेडिट ऑफ इनपुट used exclusively in supplying such service has not been taken. Second, the credit of input, आपका क्वेश्चन, जहां मेरे कुछ कमरे 7500 तक हैं, अप टू 7500, यानी वो 5% विदाउट आईटीसी में, और कुछ रूम 7500 से ऊपर है, इट मींस अब तो मेरे क्या है, हैव अ लुक ऑन द सेकंड पार्ट, credit of input tax charged on goods and service used partly for supplying such service and partly for effecting other supplies eligible for ITC. Exactly, मेरे कुछ ऐसे हैं जो 18% वाले जिन पे मुझे ITC एलिजिबल है। अगेन सी एक्सप्लेनेशन आईवी में 4 में कहीं पे वर्ड एग्जाम सप्लाई यूज नहीं किया, सप्लाइंग सच सर्विस and partly for effecting other supplies eligible for ITC is reversed as if such supply is an exempt supply. डीम कर लो कि वो एग्जाम सप्लाई है, और 17(2) के प्रोविजन लगा दीजिए। 17(2) के प्रोविजन यानी रूल 42, 43 will henceforth become applicable. ITC reversal as per 42, 43 of rules shall apply with effect from 22nd September 2025. इसका मतलब होटल, अगर तो तुम अब 7500 तक का रूम बेचोगे, सिर्फ 7500 तक का बेचोगे, तो तुम्हें आईटीसी मिलेगा ही नहीं, और अगर तुम 7500 से ऊपर भी बेचते हो, 7500 से नीचे भी बेचते हो, तो जो 7500 तक का रूम होगा उसके ऊपर उसको एग्जाम सप्लाई माना जाएगा, उसके ऊपर पार्टली इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर, in the ratio of turnover, rule 42 and 43 will become applicable. Now it means henceforth तो 42, 43 मुझे लगेगा 22/9/2025 से पहले this rule will become applicable on me. Meaning thereby अब आपको जो कैपिटल गुड्स आएंगे वो, अगर आप रूल 43 देखें तो उसमें कंसिडर होंगे 5 years is the assumed life of these capital goods in GST. Now the question comes कि अगर मेरे कुछ गुड्स जो मैं यूज कर रही हूँ, जो मेरी सर्विसेज हैं, जो मेरी 5% पे टैक्सेबल है, क्या मैं उसकी पेमेंट कैश में ही करूं या मैं आईटीसी यूज कर सकती हूँ? फ्रेंड्स, आप ने जो 5% टैक्स पे करना है उसमें आईटीसी नहीं लेना है,
उसका आईटीसी जो यूज होंगी सर्विसेज वो नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई है कि आप उसके लिए कैश क्रेडिट यूज नहीं कर सकते। मीनिंग देयर बाय अगर मेरे पास कोई पुराना एक्यूमुलेटेड क्रेडिट पड़ा हुआ है, क्या मैं उसको यूज कर सकती हूँ? टू माय कंसिडर्ड व्यू आंसर इज यस, देयर इज नो कंडीशन बीइंग इम्पोज्ड। उन्होंने कहा रेट henceforth 5% विदाउट आईटीसी लगेगा। ये कहा कि आप जो क्रेडिट ले रहे हैं, जहां हमने रेट 5% दिया है, आप उन गुड्स और सर्विसेज जो यूज होंगी सर्विस में, आप उसका आईटीसी नहीं लोगे। लेकिन कहीं पर ये कंडीशन नहीं लगाई कि आप पेमेंट इन कैश करो। However, as per the past scenarios, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर हो रेस्टोरेंट सर्विस की, गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम ये कंडीशन लगाई है कि जहां जहां इस तरह के रेट दिए जाते हैं, वहां पर जनरली गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है कि आपको पेमेंट कैश से करनी पड़ेगी। अभी तक इसमें 5% की पेमेंट विद कैश होनी चाहिए, इस तरह का कोई भी प्रोविजन एम्बेड नहीं किया गया है। और एक चीज और, डीमिंग फिक्शन को हमेशा हम स्ट्रिक्ट सेंस में पढ़ते हैं। जब आप रिवर्सल भी करने जा रहे हैं, सो इन दैट केस ऑल्सो यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट। जो लाइंस वहां लिखी हैं, यू हैव टू टेक द स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। अब मैं आती हूं सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 पे। आप में से किसी ने पूछा था पुराने क्रेडिट का क्या होगा, राइट? नाउ लेट मी वंस टच अपॉन 18 सबसेक्शन 4। एक बार मेरे साथ ऊपर नीचे का छोड़ देना, 2 मिनट के लिए 18 सबसेक्शन 4 पढ़ना। अच्छा 2 मिनट इसको हाइड करते हैं। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मेरे पे 18(4) लगेगा? 18(4) क्या है? अरे जो पुराना क्रेडिट पड़ा है, क्या मुझे उसे लैप्स करना पड़ेगा? और अगर मेरे पास इतना बैलेंस ही नहीं है, तो क्या मुझे पीएन अमाउंट इक्विवेलेंट टू करना पड़ेगा? अच्छा कार्स का एग्जांपल लेते हैं। चलिए, कार्स पे कॉम्पेंसेशन सेस था, राइट? कार्स पे कॉम्पेंसेशन सेस था, खत्म हो गया। अब आप कहते हो जी मेरे पास जो कार 21 सितंबर को स्टॉक में पड़ी हुई है, उन पे तो सेस लग के आया था, मैंने आईटीसी लिया हुआ है। henceforth जब वो 21st के बाद सेल होती हैं, तो उनके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलना, आपको सॉरी कॉम्पेंसेशन सेस नहीं लगना। अब वो उसमें से लेट्स सपोज मेरे पास 50 कार्स का स्टॉक था, पहले पड़ी हुई थी, जिसमें से 30 मैंने पहले बेच दी, 20 स्टिल इन स्टॉक है ऑन 21 सितंबर क्लोजिंग। अब ये 20 कार्स जिसपे मैं आईटीसी ले चुकी हूँ कॉम्पेंसेशन सेस का, वो बिकनी है पोस्ट रेट चेंज। सो नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या मुझे पुराना अगर सेस का बैलेंस पड़ा है, क्या उतना बैलेंस रिवर्स करना पड़ेगा, या जितना कॉम्पेंसेशन सेस का बैलेंस है वो रिवर्स करना पड़ेगा, और अगर अमाउंट उतना नहीं है तो पे एन अमाउंट इक्वल टू करना पड़ेगा? माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या 18(4) होटल इंडस्ट्री में या फिर कॉम्पेंसेशन सेस ऑफ कार्स में एप्लीकेबल है या नहीं? Quickly. And you know, these are the points which impact many industries where the rates have been changed. Now let's come to section 18 subsection 4. Friends, ध्यान से देखिएगा. Where any registered person who has availed ITC opts to pay tax under section 10. ये तो हमारे पे लगता ही नहीं, composition में तो हम गए ही नहीं. Next, where the goods supply or both supplied by him becomes wholly exempt. मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये था, क्या मेरे होटल्स जिनका रूम 7500 तक है, अप टू द टैरिफ ऑफ 7500, क्या वो एग्जेम्प्ट हुए? क्या वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है? योर आंसर वाज नो। और जो डीमिंग फिक्शन भी क्रिएट हुई थी, वो ये क्रिएट हुई थी कि भाई हम 7500 को एग्जेम्प्ट सप्लाई मान लेंगे,
सेकंड वाले में हेयर स्पॉट और 17(2) के प्रोविजन लगाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ 17(2), नॉट फॉर द पर्पस ऑफ 18 सबसेक्शन 4. I hope you are getting what I am trying to convince here. Answer is, जितने आपके रेट रिडक्शंस हुए हैं जिनमें कंडीशन नो आईटीसी की लगी है वो एक एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं है एंड हेंस आपको पिछला क्रेडिट लैप्स नहीं करना है. पिछला क्रेडिट जो लैप्स होता है वो 18 सबसेक्शन 4 में होता है एंड बिकॉज दिस सप्लाई हैज नॉट बिकम एन एग्जेम्प्ट सप्लाई आपके ऊपर 18(4) नहीं लगेगा. आप पिछले कैपिटल गुड्स के जो भी स्टॉक इनपुट फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक कैपिटल गुड्स जो भी आपके पास पुराने पड़े हुए हैं, जो आईटीसी आपके पास पुराना पड़ा हुआ है, उसे आपको लैप्स नहीं करना है और पे एन अमाउंट इक्वल टू नहीं करना. अरे ये तो आपने बता दिया कि भाई अब क्योंकि मेरा रेट 5% विदाउट आईटीसी है, ये एग्जेम्प्ट हुए ही नहीं है, तो इसलिए मेरे ऊपर 18(4) नहीं लगता, मेरा पड़ा हुआ आईटीसी लैप्स नहीं होगा. अब मैं पॉइंट को लिंक करती हूँ. 18(4) के प्रोविजन होटल इंडस्ट्री पे नहीं लग रहे हैं, क्लियर कट नहीं लग रहे क्योंकि सप्लाई एग्जाम नहीं हुई है. डीमिंग फिक्शन एक्सप्लेनेशन रोमन 4 के थ्रू जो लगाई गई है वो 17(2) के लिए लगाई गई है, उसको हम स्ट्रिक्ट सेंस में पढ़ेंगे, वो 18(4) पे एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए होटल इंडस्ट्री तुम्हारा पुराना क्रेडिट लैप्स नहीं होगा. अगर आप उस पुराने क्रेडिट से 5% की पेमेंट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है जो आपको ये कह दे कि हाँ आपको ये क्रेडिट से ही पे से नहीं करना है, कैश में ही पे करना है. एज ऑफ नाउ कम्स कार्स. A major question arose कि कार्स का कॉम्पेंसेशन सेस खत्म हो गया है और कॉम्पेंसेशन एक्ट में लिखा है कि आईटीसी के प्रोविजंस कहां से उठाइए. जीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट से मिटाटिस मिटेंडेंस विल बिकम एप्लीकेबल. तो क्या कॉम्पेंसेशन सेस पे 18(4) लगता है? आंसर इज यस, लगता है. तो क्या कॉम्पेंसेशन सेस हट गया है? My question to you all is, has the compensation cess on cars and beverages being exempt? Yes or no? Quickly, huh? क्या compensation cess beverages और cars के ऊपर exempt हो गया है? Yes or no? Quickly. अच्छा कुछ भी लिखो, हाँ? Yes or no doesn't matter. Write anything you want. गलत है, सही है, does not matter. Okay, so the answer comes no. नहीं हुआ है. So जय जी क्या हुआ है? So my answer is what has happened? Sir, exempt नहीं हुआ है. Exemption notification आई ही नहीं है क्योंकि Compensation Cess Act has its own restrictions. कोई notification exemption की नहीं आई है. Rather, what has come is, have a look. Nil rate entry has been created. Rate change करके 15%, 17%, 22% जो भी compensation cess का रेट था बेवरेजेस के ऊपर या कार्स के ऊपर नोटिफिकेशन 1/17 ऑफ कॉम्पेंसेशन सेस रेट निल कर दिया गया है, यानी उसको निल रेटेड बना दिया गया है. अब कोई कहेगा कि निल रेटेड भी तो एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट होते हैं. एम आई राइट? एम आई राइट? तो देखिए एग्जेम्प्ट सप्लाई में 2 क्लॉज 47 में लिखा है, पहला ही गुड्स और सर्विसेज विच अट्रैक्ट निल रेट. सेकंड होली एग्जेम्प्ट. ध्यान से देखना प्लीज. Nil rate of tax, wholly exempt from tax and includes non-taxable supply. I always say exempt supply has 3 limbs. पहला nil rate, दूसरा wholly exempt and तीसरा non-taxable supply. 3 limbs याद रखना. Nil rate, wholly exempt and third is non-taxable.
कॉम्पेंसेशन सेस क्या हुआ है? नील रेट हुआ है। नील रेट किसका पार्ट है? एग्जेम्प्ट सप्लाई का। एग्जेम्प्ट नहीं हुआ है, विच इज द सेकेंड लिम्ब। अब जरा 18(4) में आइए। 18(4) में क्या वर्ड एग्जेम्प्ट सप्लाई लिखा है? क्या 18(4) में वर्ड एग्जेम्प्ट सप्लाई लिखा है? आंसर इज नो। लिखा है होली एग्जेम्प्ट, जो क्या था? सेकेंड लिम्ब। एज अ रिजल्ट कॉम्पेंसेशन सेस का रेट नील हुआ है। तो बेवरेजेस एंड कार ओनर्स, आपका सेस का पुराना बैलेंस लैप्स नहीं होगा। हाँ, आप उसे आगे यूज नहीं कर पाएंगे, कारण आउटपुट में कॉम्पेंसेशन सेस ही नहीं है। और कॉम्पेंसेशन सेस के अगेंस्ट ही यूज होता है। As a result, that will not be usable anymore as of now, जो अभी तक लॉ है, क्योंकि अभी तक जबकि गवर्नमेंट ने कहा कि हमने ना गाड़ियों के रेट बढ़ाए हैं, सब्स्यूम कर दिया है सेस को टैक्स रेट में, 28% को 40% किया है, सेस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द टैक्स। So, अगर सब्स्यूम हुआ है, so the question from the pre-GST era is also pending कि पुराने सेस एंड ऑल के बैलेंस जो सब्स्यूम हुए, the matter is pending with the apex court. So as of now, compensation cess टैक्स के अगेंस्ट यूज नहीं हो सकता, बट क्या मुझे पुराना बैलेंस लैप्स करना है? आंसर इज नो। In the months to come, we will see how the apex court pronounces the old ruling. कि पुराने जो सेस थे, क्या वो जीएसटी में सब्स्यूम हुए हैं, तो क्या उनका बेनिफिट मिलना चाहिए था? सो इसीलिए डू नॉट राइट ऑफ द कॉम्पेंसेशन सेस। आपको कॉस्टिंग में ऐड करके अपनी कॉस्टिंग वर्कआउट करनी है, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट यू आर नॉट लायबल टू राइट इट ऑफ। आप उसको कैरी कर सकते हैं, कल को अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फेवरेबल आता है, सो दैट विल हेल्प यू इन ऑब्टेनिंग द बेनिफिट। एज ऑफ नाउ कॉम्पेंसेशन सेस, अगर, और प्रॉब्लम पता है क्या थी? वो डीलर सोचिए जिसके पास 20 कार्स बच गई थी, कहता जी मेरी कार्स तो 20 बच गई हैं, लेकिन मेरे तो आईटीसी बैलेंस है ही नहीं कॉम्पेंसेशन सेस का, तो क्या मुझे पे एन अमाउंट इक्वल टू करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 18(4)? आंसर इज नो, क्योंकि आपकी सप्लाई नील रेटेड हुई है, होली एग्जेम्प्ट नहीं हुई है। अगर यहां पे वर्ड होता एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो फिर मेरा नील रेटेड उसमें कवर हो जाता, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेकेंड लिंब उठाया हुआ है, wholly exempt, and compensation cess has not become wholly exempt, it has become nil rated by virtue of notification 2/25 of compensation cess rate. I hope I am able to make the point clear. Let me just talk about it. हमने ये पॉइंट शुरू किया कि किस तरह से होटल इंडस्ट्री तुम्हारे ऊपर henceforth 42-43 तो लगेगा, लेकिन जो तुम्हारे पुराना क्रेडिट पड़ा हुआ है, क्योंकि तुम एक एग्जाम सप्लाई नहीं बनी हो, तुम्हारे ऊपर 18(4) नहीं लगेगा। तो एज अ रिजल्ट आपको उसे लैप्स करने की जरूरत नहीं है। राइट, नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन। भाई आपने ये तो कह दिया जो पुराना ले चुके हो कोई बात नहीं, लैप्स मत करो 18(4) में, जो आगे लोगे वो नहीं मिलेगा, ना कैपिटल गुड्स मिलेंगे बिकॉज ऑफ एक्सप्लेनेशन रोमन 4, ना कैपिटल गुड्स मिलेंगे और ना ही इनपुट और इनपुट सर्विस मिलेंगे। अब वो एसेट बताइए ना कैपिटल गुड्स के जिनकी लाइफ 5 साल थी, बट वो अभी तक कंज्यूम नहीं हुए, पूरे 5 साल खत्म नहीं हुए हैं, तो जितना ले चुके हो तो ठीक है, तो क्या उन कैपिटल एसेट्स पे, लेट्स सपोज 5 साल लाइफ है, 3 साल निकले हैं, भी उनकी 2 साल की लाइफ पेंडिंग है, सो क्या उनके ऊपर मुझे रिवर्सल करना है? अब मैं फिर से आती हूँ उसी एंट्री पे जो हमने रोमन 4 पढ़ा था। अगर तुम्हें नॉर्मली देखूं यूज्ड फॉर सप्लाइंग सच सर्विस, सो द आंसर इज you must do the reversal for the pending life. But if I strictly go for not being taken,
So many people have this view, क्योंकि वो टेक पुराने टाइम पे हो चुका है, when I was not supplying the services, the views of mine and the other person may differ. To my considered view, अगर आपकी लाइफ पेंडिंग है और आपका एसेट पड़ा हुआ है and now you are using it exclusively in supplying such service, तो आपको जिन एसेट्स की लाइफ एक्सपायर नहीं हुई है उनके ऊपर रिवर्सल करना चाहिए. But if we go by a very bold view, then we can say that exactly by the wordings of this deeming ITC notification, जब मैंने लिया था तब मैं exempt supply में डील नहीं, exempt supply तो है ही नहीं ना, तो सेक्शन 17 तो लगता ही नहीं है. इसके अकॉर्डिंग जब लिया था क्रेडिट ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विसेज तो उस टाइम पे नहीं था. तो कुछ लोगों का ये व्यू है कि चाहे जिनकी लाइफ एक्सपायर्ड नहीं हुई है उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. बट वन थिंग इज क्लियर, henceforth क्रेडिट नहीं मिलेगा नए कैपिटल एसेट पे, नए इनपुट और इनपुट सर्विस पे. पुरानों वालों पे जो ले चुके हो वो रिवर्सल नहीं होगा. टू माय कंसिडर व्यू, जिन कैपिटल एसेट्स की लाइफ पेंडिंग है उनके ऊपर फॉर द बैलेंस पीरियड ऑफ लाइफ यू शुड रिवर्स द आईटीसी विदाउट रिवर्सिंग द ओल्डर वन. The credit 18.4 will not be applicable. Now comes cars. Cars etc. के केस में जहां रूल 42 लगता है, जहां रूल क्योंकि कार्स आर माई स्टॉक इन ट्रेड, कार्स आर नॉट माई कैपिटल गुड्स. सो क्या जो मेरे कैपिटल गुड्स आज स्टॉक में पड़े हुए हैं क्या मुझे उनके ऊपर भी रिवर्सल कोई आएगा? सो सर, अगर आप रूल 42 देखेंगे, आपकी एग्जम्प्ट आपकी जो सप्लाई है रूल 42 है वो कब से बना? वो बना सितंबर ऑनवर्ड्स. सो उसके ऊपर भी करंट पीरियड में अगर आप या जब आप करंट में होटल इंडस्ट्री पे भी रूल 42 लगाने जा रहे हैं सो वो सितंबर ऑनवर्ड्स ही एप्लीकेबल होगा. पिछले पीरियड का जब आप साल का भी रिव्यू करेंगे, क्योंकि आपको पता है रूल 42 में एनुअल रिव्यू भी होता है, जब आप एनुअल रिव्यू भी करेंगे तो आप अगस्त पीरियड तक उसको रिव्यू नहीं करेंगे क्योंकि उस टाइम तक वो कॉमन क्रेडिट आ ही नहीं. सो एज अ रिजल्ट फॉर रूल 42 ऑल्सो वो साल के एनुअल रिव्यू में भी नहीं आएगा. एनुअल रिव्यू विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स. सो अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू आई हैव ट्राइड टू गिव कि किस तरह से जो आपके रेट्स है वो इंपैक्ट करेंगे. लेट मी जस्ट शो यू अ कंप्लीट synopsis of the same and that is here. कुछ ऐसे गुड्स हैं, देखिए 3 कैटेगरीज में मैंने इनको डिवाइड किया है, जिन पे सिर्फ रेट रिडक्शन हुआ है, कोई आईटीसी विद नो आईटीसी कंडीशन. कुछ ऐसे हैं जिन पे सिर्फ रेट रिडक्शन हुआ है, आईटीसी की कंडीशन नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट में चले ना, जिन पे तो सिर्फ रेट रिडक्शन हुआ है. जैसे आपकी डिश वॉशिंग मशीन, एसी, टेलीविजन, टूथ पाउडर्स, कैंडल्स, चीज जो 28 से 18 हो गए हैं या 12 से 5% पे हो गए हैं. अगर आपका प्रोडक्ट सिर्फ हायर रेट से लोअर रेट पे आया है, आईटीसी की कोई चिंता नहीं है. यू कैन कैरी फॉरवर्ड द आईटीसी. आपने जो पुराना 28% पे लिया था वो 28 पे मिलेगा, पुराना जो 12 पे लिया था वो 12 पे मिलेगा. अब उसको यूटिलाइज कर चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जितना स्टॉक पड़ा है henceforth आप उसको नए रेट पर बेचेंगे क्योंकि सिर्फ रेट रिडक्शन हुआ. पुराना क्रेडिट आप अवेल कर चुके हैं, उसकी कंडीशन पूरी कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कईयों के केस में इन्वर्टेड ड्यूटी बन गया. साइकिल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स, मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स, न्यू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स हैव बीन क्रिएटेड. उनके केस में अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप रिफंड ले पाएंगे, और अगर ट्रेडर हैं तो डायरेक्टली आपको प्राइस रिडक्शन पे रिफंड एलिजिबल नहीं है. henceforth कह रही हूं जो इन्वर्जन आई है. बट अगर सिर्फ प्राइस रिडक्शन की वजह से, क्योंकि पहले मैंने 28 पे लिया अब वो प्रोडक्ट 18 पे जाएगा, तो सर्कुलर 135 रिस्ट्रिक्ट करता है जहां आपके इनपुट और आउटपुट सेम है, सिर्फ प्राइस रिडक्शन, यू आर अ ट्रेडर, प्राइस रिडक्शन की वजह से आपका क्रेडिट एक्यूमुलेट हो रहा है,
तो डायरेक्टली सर्कुलर 135 अलाउ नहीं करता, बट अगर आप लिटिगेट करते हैं तो सर्कुलर 135 के ऊपर, सेक्शन 54 के ऊपर बहुत सारी हाईकोर्ट जजमेंट्स है, BFG इंफॉर्मेटिक्स, बेकर ह्यूजेस एंड सच अदर जजमेंट्स from Punjab and Haryana High Court, from Rajasthan High Court, which have let down circular 135 at many instances. क्योंकि सेक्शन 54 ऐसी कंडीशन नहीं देता था, ये कंडीशंस जो है वो सप्लीमेंट की गई है बाय सर्कुलर 135 एंड सर्कुलर कैन नॉट सुपरसीड द लॉ. नॉर्मली अगर आपकी सिर्फ रेट रिडक्शंस हुई हैं, आपका जो आईटीसी अवेल्ड है आप उसको कैरी कर सकते हो, आपकी सप्लाई एग्जाम सप्लाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, आप उसे कैरी कर सकते हो फॉर अनलिमिटेड पीरियड. रिफंड ले सकते हो डायरेक्टली, आंसर इज नो. अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और आपके इन्वर्टेड ड्यूटी क्रिएट हुई है जैसे साइकिल इंडस्ट्री में, मेडिसिन इंडस्ट्री में, यस यू कैन टेक नॉर्मली, कारण जैसे उनके केमिकल्स, डाइज 18% पे है, रॉ मटेरियल 18% पे है और साइकिल 5% पे. उनके मेडिसिन इंडस्ट्री की मेडिसिन 5% पे है और बेसिक रॉ मटेरियल्स 18% पे है. एज अ रिजल्ट अगर कोई जितनी इंडस्ट्रीज में न्यू इन्वर्टेड ड्यूटी लेवी क्रिएट हुई है, गवर्नमेंट सेज हमने रिफंड के प्रोसेस प्रॉम्प्ट कर दिए हैं, तो आप ले सकते हैं रिफंड, जल्दी ले सकते हैं. अभी हम प्रॉम्प्ट रिफंड्स की बात भी कुछ देर में करें. सो व्हाट आई वांटेड टू से, अगर आपके रेट रिडक्शंस हुए हैं विद नो आईटीसी कंडीशन या कॉम्पेंसेशन सेस जैसे हुआ है, इनके ऊपर 18(4) नहीं लगेगा, नहीं लगेगा. लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट में गया है, जैसे स्टेशनरी आइटम्स, सम पेपर रोल्स एक्सेट्रा यूज्ड फॉर एक्सरसाइज एंड नोटबुक्स, इन दैट केस आप पे 18(4) लगेगा टैक्सेबल टू एग्जेम्प्ट के केस में, और आपको पिछला क्रेडिट भी रिवर्स करना होगा विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट in held in stock or inputs in semi finished goods and capital goods. So आपको, अगर आपका आईटीसी बैलेंस सफिशिएंट नहीं है तो आपको पे एन अमाउंट इक्वल टू करना पड़े, यानी जितना स्टॉक पड़ा है उस पे टैक्स कैलकुलेट करिए, उतना आईटीसी है तो रिवर्स कर दीजिए, अगर आईटीसी कम है तो पे एन अमाउंट इक्वल टू कर दीजिए. बट हमने डिटेल में डिस्कस किया जहां नो आईटीसी कंडीशन है या जो कॉम्पेंसेशन सेस है उनके ऊपर 18(4) नहीं लगता, क्योंकि ये दोनों ही एग्जेम्प्ट, होली एग्जेम्प्ट नहीं हुए हैं. अदर वेयर एवर होली एग्जेम्प्ट 18(4) विल बिकम a little bhari bharkam, but very very important point because these affects us a lot. Now अगला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट लेट मी फर्स्ट फिनिश द सर्विसेज ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड द होटल इंडस्ट्री. हमने बात की भाई होटल एकोमोडेशन में अब 5% विदाउट आईटीसी और 18% विद आईटीसी का रेट है. व्हाट अबाउट रेस्टोरेंट्स, व्हाट अबाउट रेस्टोरेंट्स? अरे रेस्टोरेंट्स में हमारा रेट है, अगर स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई, तुम्हारे ऊपर तो 5% विदाउट आईटीसी ही लगेगा, टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5% विदाउट आईटीसी. स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स के लिए प्रॉपर स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस की डेफिनेशन में भी लिख दिया गया है कि प्रेमाइस की डेफिनेशन में स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट नहीं आता है. आपको पता है ये जो नोटिफिकेशन आई थी पहले, उसमें सारे होटल्स को एक रेस्टोरेंट्स को एक ऑप्शन दी गई थी. व्हाट वाज दैट ऑप्शन? आई टेल यू. अगर आपका रूम आपके, अब पहले मैं बात कर रही हूँ, अब होटल्स आर फिनिश, लिसन, होटल्स आर फिनिश, होटल में कोई झगड़ा नहीं है, 7500 तक का कमरा 5% विदाउट आईटीसी, 7500 से ऊपर का कमरा 18% विद आईटीसी, डन. अब हम बात करें रेस्टोरेंट्स की. रेस्टोरेंट्स तुम्हारा अगर स्टैंड अलोन है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, 5% विदाउट आईटीसी मैंडेटरी रेट. अब अगर रेस्टोरेंट होटल के अंदर है, अच्छा अब होटल कैसा है, 7500 से नीचे वाला कि 7500 से ऊपर वाला? अगर तो तुम्हारा रेस्टोरेंट ऐसे होटल में है
जो 7500 से ऊपर का कमरा देता है, सो तुम्हारे ऊपर रेट है 18%. लेट मी शो यू अ स्लाइड कंप्लीटली फॉर दिस. हैव अ लुक. Standalone restaurants without anything rate is 5%, ITC not allowed. अगर आपका रूम 75, आपका रेस्टोरेंट ऐसे होटल में है जहां 7500 से ऊपर का कमरा है, नो प्रॉब्लम, सीधा 18% ITC अलाउ. बट अगर आपका रेस्टोरेंट ऐसे, ये सब रेस्टोरेंट के लिए है, अगर आपका रेस्टोरेंट ऐसे होटल में है जहां रूम 7500 को एक्सीड नहीं करता है, तो ऑप्शन अवेलेबल है, डिक्लेरेशन दे दो. 5% ITC नॉट अलाउड, 18% ITC अलाउड. यानी अगर 7500 से नीचे के होटल के अंदर आपका रेस्टोरेंट है, तो आपको ऑप्शन अवेलेबल है, आप 5% विद ITC, विदाउट ITC एंड 18% विद ITC जा सकते हैं. You have to file opt-in and opt-out declarations. The specimen of declaration were already given in the previous notification. और इस केस में स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस देखने के लिए आपको प्रीसीडिंग ईयर देखना होता है. प्रीसीडिंग ईयर में अगर आपका कमरा 75, जिस होटल में रेस्टोरेंट है, क्या उसका प्रीसीडिंग ईयर में रूम 7500 तक था या 7500 से कम था, राइट? सो सर Hari ji has asked me a question. What about both category of rooms available? Yes, a person from where the supplier has provided the services having the value of any unit of accommodation. Please read the word. Any unit of accommodation above 7500. I hope Hari ji I am able to reply your question. अगर एक भी कमरा 7500 से ऊपर है तो 18% वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस बन जाएगा. कोई ऑप्शन नहीं है, 18% विद ITC. अगर आपके रूम्स अप टू 7500 हैं, देन ऑप्शन इज अवेलेबल डिक्लेरेशन देकर और डिक्लेरेशन से बाहर आकर, राइट? सो दीज आर द फॉर्मेट्स ऑफ ऑप्ट-इन डिक्लेरेशन कि मुझे ऑप्ट-इन क्या करना है, मुझे 18% दे दीजिए, मुझे 18% दे दीजिए. नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, जो कि चेंज हो गई थी 16 जनवरी 2025 को. So there only the specified premises declaration was provided. Now we come to the next point. यहाँ पे here it is. Specified premises opt-in declaration and opt-out declaration. Now, if I talk about standalone, it has been made very clear that it is not applicable. So this is the summary right in front of you. Yes, अगर आपका रेस्टोरेंट ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज देता है, और वैसे तो जिम्मेदारी ई-कॉमर्स ऑपरेटर की है, लेकिन अगर वो ऑप्ट करता है तो उसे ऑप्ट करता है, चाहे 7500 से पर यूनिट लेस है, opt to declare their hotel as specified premises, तो उसको on their own पे करना पड़ेगा, on their own पे करना पड़ेगा. So this was the complete overview. मैंने इसमें पुरानी जो beginning में आई थी वो भी टेकन फॉर केयर की है, और जो अब थी वो भी टेकन केयर की है कि पूरे होटल इंडस्ट्री को एंड स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स को और रेस्टोरेंट्स इन द होटल को किस तरह से डील करना है, इनके ITC को किस तरह से डील करना. Now, a few more pointers other than the rate pointers is first. गवर्नमेंट कहती है बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन करें, MRP रिड्यूस करें, right? The government introduced the anti-profiteering measures initially. आज भी वो anti-profiteering के केस कौन कर रहा है पता है? ट्रिब्यूनल कर रहा है, क्योंकि उसका जो एडजुडिकेशन और एग्जामिनेशन है वो GST ट्रिब्यूनल के पास है. एंड 2 orders by the GST ट्रिब्यूनल of section 171 by the honorable president of the tribunal has already been passed, right? But now this
anti-profiteering has been on its sunset clause with effect from 1st April 2025. So कोई भी ऐसा mechanism नहीं है. We have seen डिपार्टमेंट ने बहुत सारी इंस्पेक्शंस की हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स 21 तारीख का स्टॉक ले रहे हैं. यस, इसमें काम कर रहा है लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट. अगर आप लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को कंप्लेंट करते हैं तो दे आर वेरी क्विक इन चेकिंग कि भाई एमआरपी रिड्यूस किए गए हैं या नहीं किए गए हैं. पहले गवर्नमेंट ने 9 सितंबर को गाइडलाइंस दी थी कि आपको एमआरपी चेंज करना पड़ेगा. पुराना भी दिखना चाहिए और नया भी दिखना चाहिए. आप ओवरराइट नहीं कर सकते हैं. स्टैंपिंग करिए, स्टिकर लगाइए या ऑनलाइन प्रिंटिंग करिए. Later on, the manufacturers, packers, and importers came to the government that it is very difficult for the stock which is already in the market to revise their MRPs on the product. As a result, this particular area, this particular 9(9) topic was then withdrawn, and the legal metrology relaxed its rule. And what they said कि ठीक है, आप उसको रिवाइज मत करिए, आप बाय वे ऑफ सर्कुलर. आपने देखा होगा कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के सर्कुलर आए थे, कई ऐसी शैम्पूज एंड ऑल के सर्कुलर आए थे कि ये अब इस एमआरपी पे बिकेगा टू द रिटेलर्स, राइट. और अलाउ किया कि आप ओल्ड पैकेजिंग को 31 मार्च 2026 तक दे सकते हैं. न्यूज़पेपर पहले कहा गया था न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी, अब वो भी न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के जो कंडीशन है उसको वेव कर दिया गया. आप चाहें तो आप स्टैंपिंग वगैरह के थ्रू एमआरपी रिवाइज कर सकते हैं, अदरवाइज बाय वे ऑफ सर्कुलर आल्सो यू कैन डू दैट. नो इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेट कौन सा लगाए, पुराना रेट कि नया रेट. फ्रेंड्स, बहुत सारी जगह आपने सेक्शन 14 का रेफरेंस देखा होगा. पहली बात, सेक्शन 14 लगता है चेंज इन रेट पर. चेंज इन रेट हुआ है, पुराने से नए रेट पर आए हैं. सेक्शन 14 में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कवर्ड है कि रेट चेंज हुआ है गुड्स और सर्विसेज का. और ये सेक्शन 12 और 13 को ओवर रूल करता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 12-13. अगर आप ट्रांजिशन फेज में है, 21 से 22 सितंबर में जा रहे हैं, तो 12 और 13 नहीं देखना. कौन सा सेक्शन देखना है? सेक्शन 14 देखना है. अगर आप ये सेक्शन देख रहे हैं तो गुड्स और सर्विसेज को लाइक पैरेलल प्लेटफॉर्म पे ट्रीट किया गया. लेकिन आपको याद होगा गुड्स का एडवांस पे टैक्स हटा दिया गया. रिमेंबर, गुड्स का एडवांस पे टैक्स हटा दिया गया था. सो वो नोटिफिकेशन आई थी 66/2017 कि गुड्स के एडवांस पे टैक्स देने की जरूरत नहीं. एंड उस नोटिफिकेशन में सेक्शन 14 का भी इंपैक्ट था. इफ यू विल रीड दैट नोटिफिकेशन 66/2017, उसने गुड्स के लिए चेंज किया. एज अ रिजल्ट सर्विसेज का टाइम कौन सा रेट लगेगा, नया या पुराना, मैं सिर्फ सेक्शन 14 देखूंगी. सर्विसेज के लिए सिर्फ सेक्शन 14 देखूंगी, पर गुड्स के लिए सेक्शन 14 प्लस नोटिफिकेशन 66/2017 भी देखनी पड़ेगी. अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए. You people are writing the questions. I will take it a little later because otherwise I will lose the rhythm. My question to you is कि अगर मेरे सर्विसेज के केस में एडवांस टैक्सेबल है, राइट, यू ऑल नो. In case of goods, advances are not taxable. Now, मुझे गुड्स का इनवॉइस कब करना होगा? When should I raise invoice for the goods? सर, अगर मैं सेक्शन देखूं गुड्स का इनवॉइस, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, अरविंद जी? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. टाइम ऑफ सप्लाई, sir, before the goods delivery, at the time of before or at the time of delivery of goods. So goods का invoice आपको goods के साथ करके भेजना होता है at the time of dispatch. Absolutely. पहले मैं सर्विसेज की बात करती हूँ. सर्विसेज में सीधा रूल है, सप्लाई 3 हिस्से है बिफोर, 3 हिस्से आफ्टर.
राइट, 3 पैरामीटर्स हैं सर्विसेज के केस में, सप्लाई, इनवॉइस एंड रिसीट पेमेंट, रिसीट ऑफ पेमेंट। 3 में से 2 इवेंट अगर पोस्ट में हो गए, आफ्टर रेट लगेगा आफ्टर, बिफोर रेट लगेगा बिफोर, बिफोर 2 बिफोर है रेट लगेगा बिफोर, 2 आफ्टर है रेट लगेगा आफ्टर, 2 बिफोर है रेट लगेगा बिफोर, आफ्टर 2 आफ्टर है रेट लगेगा आफ्टर। आउट ऑफ द 3 पैरामीटर्स, if 2 are in before, then before rate, if 2 are in after, then after. Now the main question in this comes is, invoice की डेट आपको पता लगती है, पेमेंट की रिसीट की डेट लिखी हुई है when it is entered in the books of accounts. What is difficult to calculate is date of supply. अभी I was dealing with the transition phase. अभी सोचिए 2017 के ट्रांजिशन के केसेस कितने चल रहे हैं, उसमें we were dealing with a case of CPWD and उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स रनिंग थे और कॉन्ट्रैक्टर कर रहा था और जीएसटी फेज आ गया ना, कॉन्ट्रैक्टर ने रनिंग बिल दे रखा था, अभी तक उसका अप्रूवल नहीं हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट पुराने पीरियड में हुआ था जिसपे सर्विस टैक्स लगा हुआ था या वैट लगा हुआ था। So the question comes, what is the date of supply? Date of supply is when you are able to substantiate and able to raise the invoice. जहां अभी रनिंग बिल्स है, अभी सामने वाले ने वेरिफिकेशन नहीं की, वो वेरिफिकेशन के बाद आपकी गलतियां निकालता है, आपकी अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, that will not be called as the date of supply. So in this case, what is a challenging provision is date of supply, किसको माने, but whenever you are able to raise an invoice is जब आपका काम सैंक्शन हो गया, स्पेशली फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दिस इज एप्लीकेबल, जब आपका काम सैंक्शन हो गया, अप्रूव हो गया सामने वाले से और वो सर्टेनमेंट हो गई उसकी, जैसे आप देखो वैट सर्विसेज थी जो मोबाइल्स वगैरह में होती है, उनका एक रनिंग मीटर चलता है। सो जब वो सर्विस का एक इवेंट, हैपनिंग ऑफ इवेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कि ये सर्विस रेंडर हो गई है। सो 3 में से जो 2 इवेंट होंगे दैट विल बी कंसिडर। नाउ फॉर गुड्स हमें ये तो देखना ही नहीं है बाय वर्च्यू ऑफ नोटिफिकेशन 66/2017। जब ये देखना ही नहीं है, सो पीछे रूल था डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट विच एवर इज अर्लियर। अब यहाँ तो डेट ऑफ रिसीट देखना ही नहीं है क्योंकि एडवांसेस के ऊपर, गुड्स के एडवांसेस पे पेमेंट का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। एज द रिजल्ट इट इज ऑलवेज द डेट ऑफ इनवॉइस। अब इसमें से आप लोगों ने कहा डिस्पैच से पहले बिल रेज करना जरूरी है, तो क्वेश्चन कम्स फिर केस नंबर 3 कैसे होगा? सप्लाई बिफोर कर दी, रेट चेंज से पहले यानी 21 सितंबर से पहले, और इनवॉइस किया 21 सितंबर के बाद। जनरली दिस कैन नॉट हैपन एंड लेट मी टेल यू, मेनी कार कंपनीज ऑप्टेड फॉर दिस वे। उन्होंने क्या किया, अच्छा कार नहीं है, कार ले जाओ, टेक द कार, टेक द डिलीवरी, हम बिल बाद में दे देंगे नए रेट्स, कॉम्पेंसेशन सेस नहीं लगेगा, दे हैव टू पिक बैक द स्टॉक्स। रीजन, अरे आपको इनवॉइस काटना जरूरी था एट द टाइम ऑफ डिस्पैच, राइट? नाउ व्हेन दिस सिचुएशन विल कम, एग्जांपल ऑफ दिस सिचुएशन इज सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पोस्ट 6 मंथ्स। अब उसमें सप्लाई तो कर रहे हैं बट इनवॉइस कब जाएगा? 6 महीने बाद जब वो सप्लाई अप्रूव हो। सो आप डिलीवरी चलान पे गुड्स बेचते हैं। सो व्हेन आई वाज मेकिंग दिस चार्ट आई वाज एनकाउंटरिंग कि ये दोनों सिचुएशन कब होंगी, आफ्टर इनवॉइस पहले चला गया और डेट ऑफ सप्लाई बाद में। दिस इज द केस वेयर द डिस्पैच इनवॉइस वाज मेड ऑन 21/9 और डिस्पैच कब की? 22/9 को। बट हमें कौन सी डेट लेनी है? डेट ऑफ इनवॉइस। रेट कौन सा लेना है? डेट ऑफ इनवॉइस। इसमें न्यू रेट लग जाएगा और इसमें ओल्ड रेट। टू मच ऑफ द मार्किंग, लेट मी रिमूव दिस एंड लेट मी कम टू दिस। यस, इसमें
क्योंकि हमारे लिए डेट ऑफ इनवॉइस इंपॉर्टेंट है, सो डेट ऑफ इनवॉइस आफ्टर तो न्यू रेट, डेट ऑफ इनवॉइस बिफोर तो। फ्रेंड्स, अगर आपने गुड्स के ऊपर भी सर्विसेज के प्रोविजन लगा दिए तो आपको केस नंबर 3 और 4 में रिवर्स आंसर मिलेगा। सो बी केयरफुल। जो नोटिफिकेशन 66/2017 है वो सिर्फ गुड्स के लिए आई हुई है। नाउ लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। आपने गुड्स डिस्पैच करने थे, ई-वे बिल कर दिया, लेटर ऑन रिवाइज हो गया रेट, क्या ई-वे बिल दोबारा, या वो गुड्स अभी तक डिलीवर नहीं हुए, तो क्या आपको ई-वे बिल दोबारा करना है? क्या आपको ई-वे बिल दोबारा करना है? यस और नो? आंसर इज नो। रीजन, हियर इट इज। As per Rule 138 of CGST Rules 2017, the e-way bill is to be generated before the start of the goods. No new e-way bill is to be generated. No mandatory requirement for cancellation and fresh generation of e-way bill which have been in transit. Now, this provision is not that applicable, but one provision is very much applicable. I need answer from all of you if you want me to answer your questions. And that point is, 100 रुपीज की गुड्स थे, 12% का टैक्स था, 112, या सर्विसेज थी, व्हाटएवर। अब उसका क्रेडिट नोट जाना है, क्योंकि गुड्स का रेट हो गया है या सर्विसेज का रेट हो गया 18%। आपने ये बिल रेज किया था 20/9 को, और क्रेडिट नोट इशू हो रहा है 25/9। My question is, credit note will go with which rate? 12% or 18%? A quick answer from all of you. हाँ जी, quickly. अच्छा, 2 answers. Arvind Jain ji saying 12%, Hari ji saying 18%, Bhatia ji saying new rate यानी 18%. भाटिया सर, एक बात बताइए हरी जी, लेट्स सपोज ये मेरा ही बिल था, मैंने आपको दिया था, राइट? ड्यू टू एनी सर्विसेज का कोई बिल था, 12% पे दिया था, और मैंने वो काम किया ही नहीं, सर्विस रेंडर की ही नहीं, आपने वो क्रेडिट नोट मुझे देना है। अगर आप 118 से दोगे तो मेरा तो अकाउंट 6 रुपीज से स्टैंड कर जाएगा। आर यू गेटिंग इट? Credit note is the cancellation of the old supply that has already been made. I hope I am able to make this point clear to those who mentioned the new rate 18% लगेगा। सप्लाई तब हुई थी सर पुराने रिजीम में, अभी क्या कर रहे हैं? उस सप्लाई का कैंसलेशन कर रहे हैं। अगर मैं इसको अब मेरे को या 118 से क्रेडिट नोट दोगे तो 6 rupees balance will stand. It is the cancellation of the old supply, the time of supply which has already been taken place. Hence, the credit note, it is a settled law, has to go with the old rate. इसका मतलब 20/9 से पहले जो गुड्स आए हैं, अगर उनकी रिटर्न 9th month 10th month, कपड़े के केस में कितना होता है? कपड़े के केस में वापसी जाती है, विंटर्स का माल आता है, माल आ गया 20/9 को, वापसी जाएगी जनवरी 2026 में, इस रेट से, न्यू रेट से। हैव अ लुक। Date of supply was 10/9. Date of return of goods is 25/9. So the credit note has to be issued with the old rate. If you ask me reverse charge पे कौन से रेट लगेंगे? अरे रिवर्स चार्ज के कोई सेपरेट रेट्स नहीं होते हैं। रिवर्स चार्ज के वही रेट्स होते हैं जो नॉर्मल गुड्स की सप्लाई और सर्विसेज के होते हैं। तो जो गुड्स की सप्लाई और सर्विसेज के रेट होंगे, सेम रेट विल बी एप्लीकेबल। नाउ I hope rate key changes, ITC reversals, we have touched upon a little. Secondly, अच्छा एक और rate change बताइए before I move on to the tribunal. Let me hide that. Okay. अच्छा, apparels का value change हुआ है कि 2500 से ऊपर का apparels होंगे तो रेट लगेगा 18%, 2500 से बिलो, पहले 1000 था, हाँ, now it is 2500.
अगर 2500 से नीचे के होंगे तो रेट लगेगा 5%. Now this 2500 is MRP or not? Now this 2500 is MRP and same is applicable for footwear. Okay, anybody else? Arvind ji saying MRP. Anybody else? Let's have a look. Apparels and textile value based taxation है उसमें 5% का रेट है और 18% का रेट चेंज हुआ है and this is not MRP. This is sale value and not the retail selling price. जिसपे मैं goods बेचूंगी पराग जी, not the MRP. अगर मैंने goods 2600 के बेचे, MRP साइड अगर मैंने गुड्स 2400 के बेचे, so 2400 transaction value will be considered. MRP based concept सिर्फ और सिर्फ tobacco, पान मसाला, tobacco and tobacco products पे, not on any other. And likewise for the footwear also, it is sale value and not RSP. 2500 से कम का अगर पेयर है, so 5%. अगर 2500 से ज्यादा का पेयर है, so then it is going to be 18%, right? Now, if we move further, see, tobacco has RSP based taxation, right? BD, pan masala, the rates have increased, but these are RSP based ones. Coal, sir, coal का rate 5% से 18% हुआ है, but cess has finished. Likewise for cars. कार्स का, छोटी कार्स का रेट 18% हो गया, बड़ी कार्स का रेट 40% होगी, बट नो सेस. सो henceforth क्योंकि टैक्स लगना शुरू हो गया है, सो इंडस्ट्री, आई हैव गिवन एन एग्जांपल हियर दैट द रिमूवल ऑफ नॉन क्रेडिटेबल सेस ऑन कोल हैज रिड्यूस्ड द इफेक्टिव टैक्स बर्डन एंड इंप्रूव्ड द इनपुट कॉस्ट एफिशिएंसी फॉर इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट एंड स्टील. So this is also one of the very vital points. And one thing more, friends, transport service में पहले रेट होता था 5% without ITC और 12% with ITC. So पर्सन देखता था कि मुझे 12% की ऑप्शन पे जाना है कि नहीं जाना. Now it is 18%, 5% and 18%, huge gap. So one needs to revisit कि क्या उसे 5% पे टैक्स देना है या 18% पे टैक्स देना है, right? I am not dealing the changes in the rates. We are all have been quite aware about it. Let me come to the other pointers like credit notes and the refunds. Let me touch upon those topics. Friends, and one thing more, government ने टेक्सटाइल सेक्टर में तो इन्वर्टेड ड्यूटी कम की है, right? लेकिन to some extent, but the basic products like chemicals and dyes के rates change नहीं हुए हैं. So वहाँ पे inverted duty for the for such sectors which use chemicals and dyes still exist. And secondly, inverted duty structure कई industries में बढ़ भी गया है. Like I told you, car manufacturers and such other ones, they see, here it is. Healthcare, inverted impact has been deepened on medical devices manufacturers, renewable energy device manufacturers, agriculture machinery manufacturers, cycle manufacturers, geotextile and agrotextile. So instead of reducing, somewhere we feel कि जो rate reductions हुई हैं, although slabs reduce किए गए हैं, but somewhere up slab reduce के benefits क्या है? Lesser classification disputes. Classification disputes जो है वो कम हो जाएंगे. क्यों? Sir, near about 70% of the products have either 27 have either one rate or up to 70% have only two rates. So अगर आप HSN गलत भी लगा देते हो तो आपका रेट जो है वो सेम रहता है, right? So now let me, there are many, sir, इस PPT में मैंने सारी सर्विसेज का एनालिसिस किया है कि पुराना रेट क्या था, नया रेट क्या हुआ है, किस तरह से लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट सर्विस, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट किया गया है. बट कंसिडरिंग द टाइम कंस्ट्रेंट, ईच एंड एवरी सर्विस
को डिस्कस करना इज वेरी टफ, बट यस इसमें पूरी एग्जांपल्स के साथ कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में क्या होगा एंड ऑल अदर थिंग्स दैट हैव बीन डेल्ट विद, each and every service has been included in it. Now let me come to जॉब वर्क को जरा सा टच अपॉन करूंगी. जॉब वर्क के रेट्स रिवाइज हुए हैं. कपड़े एंड का जॉब वर्क और द जॉब वर्क ऑफ दिस ज्वेलरी एटसेट्रा हैज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो 5% पर ही रहा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है. जो हमारी फिजिकल वेलबींग एंड ब्यूटी सर्विसेज है, मेड बी सैलून्स, मेड बी जिम्स, मेड बी कॉस्मेटोलॉजी, बिकॉज मेनी क्वेरीज आर कमिंग इन कॉस्मेटोलॉजी, जो सर्जरीज होती हैं एटसेट्रा, जो कॉस्मेटोलॉजी में आती थी, वो सब ब्यूटी एंड फिजिकल वेलबींग सर्विसेज में कवर्ड है. सो ये जितने वेलनेस सेंटर्स हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेशियल्स एंड ऑल भी देते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज रेंडर करते हैं, दोज ऑल आर ब्यूटी ट्रीटमेंट्स एंड दोज वेलनेस सेंटर्स विल नाउ बी कवर्ड अंडर 5% विदाउट IPC. राइट, नाउ लेट मी कम टू दिस नोटिफिकेशन. ये सर्विसेज का ही नोटिफिकेशन है जिसमें कि लोकल डिलीवरी सर्विसेज को जो ई कॉमर्स देता है उसकी कंप्लीट एग्जांपल के साथ मेंशन्ड है, which I am right now not touching upon. And let me come to the refunds first. Friends, provisional refund. दो कैटेगरीज ऑफ रिफंड हैं, एक तो एक्सपोर्टर्स और एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला. एक्सपोर्टर्स, तुम्हारे लिए तो पहले ही प्रोविजन था, तुम्हें 90% रिफंड मिलना चाहिए 7 दिन के अंदर अंदर एज यू फाइल योर एप्लीकेशन. राइट, मिलता नहीं था, ऑफिसर देता ही नहीं. स्टार्टिंग में दिया. I still remember in the year 2018 when we applied for the refunds, we got 90% of the refund in case of exporter within 7 days. 10% after scrutiny milta. Now the government is a little strict in that respect, that the provisional refunds will now be granted on risk-based assessment. System निकालेगा कि रिस्क बेस्ड असेसमेंट के केस में किसको रिफंड मिलना चाहिए और किसको रिफंड नहीं मिलना चाहिए. सो अकॉर्डिंगली इट विल बी डिसाइडेड कि प्रोविजनल रिफंड मिलेगा और अगर नहीं मिलेगा तो रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग होने चाहिए. लेकिन इसके ऊपर इतने चेक्स लगाए गए हैं, अगर आपका पिछला मैटर डिस्प्यूट में है, अगर आपको शो कॉज नोटिस इश्यू हुआ है पिछले रिफंड्स पे, तो आपको प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा. सो अ नंबर ऑफ लूप होल्स हैव बीन लेफ्ट ओपन फॉर द प्रोविजनल रिफंड्स. एक्सपोर्टर्स के लिए तो दिस इज द गुड न्यूज. ये पहले भी थी बट नाउ इट विल बी कमिंग अप विद मोर फोर्स एंड सिस्टम ओरिएंटेड इसको किया गया है. बट पहले इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वालों के लिए कोई भी प्रोविजनल रिफंड का पॉइंट था ही नहीं. गवर्नमेंट ने अभी तक लॉ अमेंड नहीं किया. रूल इज येट टू बी अमेंडेड, सेक्शन इज येट टू बी अमेंडेड, बट अ बेनिफिट हैज बीन गिवन कि अगर आप 1/10/2025 के बाद अगर इन्वर्टेड ड्यूटी का रिफंड भी लगाओगे तो दैट विल बी डेल्ट इन द सिमिलर वे एज इन केस ऑफ एक्सपोर्ट रिफंड्स. सो अगर आप लो रिस्क कैटेगरी में आते हो तो ही आपको ये रिफंड मिलेगा. रिस्क कैटेगरी कौन डिसाइड करेगा? रिस्क कैटेगरी डिसाइड करेगा सिस्टम बेस्ड. और अगर ऑफिसर को कुछ लगता है कि ही इज नॉट गोइंग टू गिव यू द प्रोविजनल रिफंड, देन द रीजंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग. Again, the provisional refunds on the inverted duty structure are also applicable for the applications made post October 2025. Right? 7 days में refund है. Now the next big change is appellate tribunal को I will just touch upon GST 9 and 9CB. But पहले let me touch upon the Finance Act 2025 का major change, क्योंकि आपको पता है फाइनेंस एक्ट 2025 के जो प्रोविजंस है वो भी एप्लीकेबल कर दिए गए हैं, जिसमें कि जो सफारी रिट्रीट को ओवरकम करने के लिए जजमेंट आई थी, वाउचर्स की टैक्सेबिलिटी डिलीट कर दी गई थी, दोज ऑल हैव बीन मेड एप्लीकेबल. वाउचर्स पे अब टैक्स नहीं है, पहले भी नहीं होना चाहिए था.
आईटीसी में से ओवरकम जो सफारी रिट्रीट की जजमेंट को ओवरकम करना था, ऑल दोज पॉइंट्स हैव बीन मेड applicable. Now let me just touch upon the credit notes first. Section 15, subsection 3, clause B, post sale discount. सर्कुलर भी आया इसके में कंडीशन थी कि सामने वाले ने आईटीसी रिवर्स किया हो तभी सेलर तुम अपनी रिडक्शन ले सकते। 15(3)(b) of the CGST Act has this condition that the post sale discount, in case of post sale discount, seller तुम्हें रिडक्शन तभी मिलेगा अगर सामने वाले ने आईटीसी रिवर्स की, लेकिन मैकेनिज्म नहीं लिखा था। नाउ 15(3)(b) में लिख दिया गया by virtue of credit note under section 34। 15(3)(b) में मैकेनिज्म दे दिया कि कैसे आईटीसी रिवर्स किया है बाय वे ऑफ द क्रेडिट नोट बी। अगर पोस्ट सेल डिस्काउंट में आईटीसी रिवर्स किया गया 15(3)(b) को सेक्शन 34 से लिंक कर दिया गया। क्योंकि पहले ये नहीं था तो सर्कुलर नंबर 212 था। शो यू दिस, गवर्नमेंट ने सर्कुलर 212 दिया था। मैकेनिज्म मैं कैसे पता करूं कि सामने वाले ने आईटीसी रिवर्स किया है? वो सर्टिफिकेट ले लो। 15(3)(b) क्लॉज नंबर 2 में आपकी आउटपुट का रिडक्शन तभी होगा अगर सामने वाला क्रेडिट नोट, अगर सामने वाला आईटीसी रिवर्स करेगा। मैकेनिज्म था ही नहीं, सेक्शन 34 का रेफरेंस ही नहीं था। उन्होंने क्या कहा? सर्टिफिकेट ले लेना। सेक्शन था, ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि सीए और सीएमए का सर्टिफिकेट ले लेना। अब क्या इस सर्कुलर की जरूरत रही? आंसर इज नो। क्यों? अब गवर्नमेंट ने 15(3)(b)(2) में प्रोविजन इंट्रोड्यूस करने को कह दिया कि हम इसको कहां से लिंक करेंगे? 34 से। पोस्ट सेल डिस्काउंट में आईटीसी रिवर्स हुआ हो बाय इशूइंग अ क्रेडिट नोट अंडर सेक्शन 34, और आईएमएस से भी इसको लिंक कर दिया। आईएमएस में वो क्रेडिट नोट एक्सेप्ट करेगा, मींस उसका आईटीसी डिक्रीज होगा तो आपको 15(3)(b)(2) में लायबिलिटी जो है वो कम हो जाए। सो हेंस 212 सर्कुलर for taking the certificate stands rescinded. Finish. खत्म हो गया। A new circular was issued. This section, circular 212 has been withdrawn. Now, section 34 में condition by virtue of Finance Act डाल दी। And what is that Finance Act condition? Let me show you that. That condition which has been introduced in Finance Act, पहले सेक्शन 34 में था रिडक्शन आउटपुट लायबिलिटी में सप्लायर को परमिट होगी इफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट हैज बीन पास्ड, अनजस्ट एनरिचमेंट ओनली। नाउ न्यू पॉइंट हैज बीन एडेड। क्रेडिट नोट फ्रेंड्स मेनी पर्पसेस के लिए जाता है, इवन फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स और सर्विस, नॉन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। हर क्रेडिट नोट में पहले सिर्फ डिस्काउंट में कंडीशन थी, सामने वाले ने रिवर्स किया 15(3)(b)(2) में। अब हर क्रेडिट नोट में कंडीशन डाल दी कि सामने वाले ने क्रेडिट रिवर्स किया हो। इफ अवेल्ड हैज, आपको रिडक्शन इन आउटपुट लायबिलिटी नहीं होगा अगर सामने वाले ने क्रेडिट रिवर्स नहीं किया। तो सेक्शन 34 में हर तरह के क्रेडिट नोट में ये कंडीशन डाल दी गई, और अब आईएमएस में भी प्रोविजन आ गया क्रेडिट नोट वो सामने वाला एक्सेप्ट करेगा ऑल्दो इट हैज अ नंबर ऑफ ग्लिचेस। और इसके साथ साथ आईएमएस में भी अमेंडमेंट कर दी। पहले क्रेडिट नोट आईएमएस में अमेंड नहीं हो सकते थे, अब वो भी प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। क्रेडिट नोट का आईएमएस के साथ जो लिंकिंग है वो भी चेंज कर दी गई है। अब सामने वाला आईएमएस में क्रेडिट नोट एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ही सेलर तुम्हारी आउटपुट लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस होगी। और हर तरह के क्रेडिट नोट में अब आपको रिवर्सल सामने वाले ने किया है या नहीं चेक करना जरूरी है। और ये तो इतना इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, इतनी लिटिगेशन पेंडिंग थी। हर ऑडिट में, हर एक स्क्रूटनी में डिपार्टमेंट कहता था अच्छा आपको कमर्शियल क्रेडिट नोट्स आए हैं, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स आए हैं। दे यूज्ड टू कंसिडर कि
कमर्शियल क्रेडिट नोट्स में 100 रुपया 95 आपको सामने वाला दे रहा है, 5 रुपीज आपको सप्लायर दे रहा है, तो हम तो 100 रुपीज मानेंगे। यानी कमर्शियल क्रेडिट नोट्स पे डीलर को हाथ से टैक्स देना पड़ेगा, including 5 rupees of credit note that has been received. But now this litigation has come to an end. Circular 251 में 3 provision डाले गए. First, ITC on financial credit note, supplier allowed wide circular, supplier tax to be paid on original TV by the supplier and सामने वाले को पूरा ITC मिलेगा. Example I have given, ABC ने XYZ को 1,18,000 के ऊपर इंक्लूडिंग GST दिया, लेटर ऑन 10,000 का क्रेडिट नोट दे दिया, नो इश्यूज, चाहे उसकी कॉस्ट 90,000 पड़ी है लेकिन उसको पूरा क्रेडिट अवेलेबल है ऑफ ₹18,000, राइट। और इसके ऊपर नॉन पेमेंट का कॉन्सेप्ट 10,000 का नहीं लगेगा, 180 दिन का, क्योंकि वो भी डिपार्टमेंट कहता था आपने तो 10,000 पे ही नहीं किया, 10,000 का तो आपको कम हो गया, तो आपको वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, हम आपको पूरा आईटीसी नहीं देंगे 1 लाख के ऊपर, क्योंकि 10,000 तो आपने उसको कभी पे नहीं किया। क्लैरिफाइड ना? ये जो डिस्प्यूट था इसको एंड कर दिया गया। अगर आपने 1 लाख की गुड्स लिए, 18,000 का टैक्स उस पे पे किया, लेटर ऑन अगर आपको कमर्शियल क्रेडिट नोट आ जाता है 10,000 का, आप सामने वाले को पे 1,08,000 कर रहे हो, बट आपको जो आईटीसी है वो पूरा 1,18,000 पर, यानी 18,000 का आईटीसी मिलेगा। ये आईटीसी की बात थी। सेकेंड, अगर पोस्ट सेल डिस्काउंट है तो आपको कमर्शियल क्रेडिट नोट पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है, अगर मैन्युफैक्चरर और एंड कस्टमर में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। और जनरली मैन्युफैक्चरर और एंड कस्टमर में जनरली एग्रीमेंट नहीं देखा जाता, तो जो नॉर्मल कमर्शियल क्रेडिट नोट्स आते हैं उस केस में आपको कमर्शियल क्रेडिट नोट पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर, अगर they again have considered कि अगर आपका फाइनल एंड कस्टमर के साथ एग्रीमेंट है तो उस केस में आपको कमर्शियल क्रेडिट नोट पे टैक्स देना पड़ेगा, फॉर विच सर्टेन एग्जांपल्स फ्रेंड्स, मैंने पूरा ट्रांजैक्शन ट्रेल फॉर पॉइंट नंबर 2 हैज बीन कंसिडर इन इट कि अगर मैन्युफैक्चरर और एंड कस्टमर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, और अगर जैसे कार कंपनीज ने कुछ किया था कि आपको एंड कस्टमर को ये देना पड़ेगा, इतना आपको पास करना जरूरी है, सो इन दैट केस किस तरह से आउटपुट और इनपुट वर्कआउट होगा, अ कंप्लीट प्रैक्टिकल एग्जांपल टू दैट एस्पेक्ट हैज बीन गिवन, बट अल्टीमेटली दिस लिटिगेशन हैज कम टू एन एंड। लेकिन अगर आप गुड्स के बदले में कोई सर्विस दे रहे हो, प्रमोशनल सर्विस, अगेन एग्जांपल्स हैव बीन गिवन। लाइकवाइज, जैसे उसने कहा आपको मेरा 9x10 का बोर्ड लगाना पड़ेगा, उसने आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, आपको प्रोडक्ट पे डिस्काउंट नहीं मिला, नो, आपको प्रोडक्ट का क्रेडिट नोट नहीं मिला, आप मेरा बोर्ड लगाइए, इसकी पेमेंट मैं आपको करूंगा बाय वर्च्यू ऑफ क्रेडिट नोट। अ सेपरेट सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड लाइक एग्जांपल्स, सेल, स्पेशल सेल ड्राइव, को ब्रांडिंग, एग्जीबिशन, इन दैट केस वो क्रेडिट नोट टैक्सेबल हो जाएगा। और कॉस्मेटिक्स में ये बहुत कॉमन है। रिसेंटली द ऑफिसर हैज मेड एन एडिशन कि उसने लिखा था डिस्प्ले इनकम दे रहा हूं मैं आपको, ओरिजिनल प्राइस का रिडक्शन नहीं था, ओरिजिनल जो कॉस्मेटिक परचेज किया था उसका रिडक्शन नहीं था, डिस्प्ले बोर्ड लगाने के लिए सीएन आया था। दैट इन द थर्ड पार्ट प्रमोशनल एक्टिविटीज में कवर होके उसके ऊपर आपको आईटीसी जो है वो टैक्स जो है वो आउटपुट में देना पड़ेगा। अ फ्यू एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड आई हैव आल्सो टेकन, कहां पे हम मानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं था। लास्ट टॉपिक, टू थिंग्स आई वांट टू टच अपॉन। एक तो आई वुड लाइक टू हाईलाइट द पॉइंट ऑफ intermediary service of IGST Act, a very very vital change, क्योंकि ये मैटर कोर्ट्स में भी बहुत पेंडिंग है। EY का इसके ऊपर जजमेंट था जो टैक्स पेयर के फेवर में था। देन केसी का जजमेंट अभी अभी सुप्रीम कोर्ट से आया था, ऑल्दो वो एक स्पीकिंग ऑर्डर नहीं था, बट द गवर्नमेंट हैज
addressed this issue. अभी इसके ऊपर amendment आना बाकी है. Let me take you to that one amendment and then I will just touch upon tribunal. उस केस में intermediary service section 13 subsection 8 of IGST Act को withdraw किया जा रहा है. इसका मतलब जो आपको कमीशन, फॉर एग्जांपल फॉरेन यूनिवर्सिटी से जो कमीशन इंडिया में आती थी, जिसमें आप फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में लाते थे बाय वर्च्यू ऑफ 13 सबसेक्शन 8, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो था वो इंडिया बन जाता था, उसमें ऊपर टैक्स देना पड़ता था. नाउ इंटरमीडियरी की वो एंट्री डिलीट होने से दैट विल स्टैंड रिलीव्ड. आपको जो फॉरेन कमीशन इंडिया में आ रही है थ्रू यूनिवर्सिटीज एंड ऑल, उनकी उसको एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा और टैक्स नहीं देना पड़ेगा. लेट मी शो यू दिस. हाउएवर, जो आप एक्सपोर्ट कमीशन बाहर दे रहे हो वो टैक्सेबल हो जाएंगी, वो इंपोर्ट में फॉल कर जाएंगी. लेट मी जस्ट गो टू दैट एंट्री एंड लेट यू शो दैट. सो दैट थिंग 13 सबसेक्शन 8 के आने डिलीट होने से दोनों साइड इंपैक्ट होगा. आने वाली कमीशन एक्सपोर्ट बन जाएंगी और बाहर दी जाने वाली जो कमीशन एक्सेट्रा है लाइक एक्सपोर्ट कमीशन, दैट will also get impacted. And last thing which I would like to discuss, ट्राइब्यूनल की फाइलिंग ऑलरेडी पोर्टल खुल चुका है. सितंबर 2025 से स्टार्ट हो चुकी है स्टैगर्ड मैनर में. और स्टैगर्ड मैनर चेक करने के लिए ARN और CRN यूज करना है ऑफ द फर्स्ट अपील. सर ऑर्डर नहीं, फाइलिंग का नंबर ARN और CRN ऑफ द फर्स्ट अपील. उसमें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी आया है और एडवाइजरी भी इश्यू की गई है. कट ऑफ दिए गए हैं. अगर आपका ऑर्डर इस डेट तक है तो आप 31 अक्टूबर तक फाइल करेंगे, और अगर आप उससे पोस्ट डेट का ARN या CRN डाल रहे हैं तो सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा. इट विल नॉट लेट यू गो फॉरवर्ड. एक्सपेक्टेड है दिसंबर एंड तक हायरिंग स्टार्ट हो जाएंगी. 30th June 2026 by virtue of notification SO 4220E dated 17 September 2025. अगर आपका ऑर्डर 1 अप्रैल 2026 से पहले का है तो 30th June 2026 is the last date for this filing of the appeal to the tribunal. In the given possible time, I have tried to touch upon the topics to the extent possible. Now, whatever queries are there, we can proceed for the same. Hari sir has asked me, when Mediclaim is paid for 3 years and originally paid GST 18% of insurance company. Now, since rate revised post for say 14 months, how does this affect insurance company and to the insurer? Sir Hariji, to my considered view, section 14 will come into picture, and because the invoice has also been raised and the time of supply has also been done, the event has taken there at that time. So the rate of 18% will continue. However, there is one view that section 14 is applicable in case of change of rate. When there is no change of rate and a new levy or इस mediclaim पे levy हटा दी गई है, तो section 14 should not come into picture. So तब भी हम time of supply के according चलेंगे, और because the payment has also been made, according to me, the 18% will stand continued. I request the other members to please post their queries. One second. In homestay, what will be the status of RCM paid on rental premises? Even that needs to be claimed proportionate. In homestay, what will be the status of RCM paid on rental premises that needs to be claimed proportionate? Sir, homestay है आपका, मतलब आप in a way PG etc का कर रहे हैं. Status of RCM paid on rental premises. Okay, आपने
आपका तो सर होम स्टे है दैट नीड्स टू बी क्लेम्ड प्रोपोर्शनेट। यस मनोज जी, जो भी आईटीसी है वो चाहे डायरेक्टली आ रहा है चाहे बाय वे ऑफ आरसीएम आ रहा है, अगर आप प्रोपोर्शनेट मेथड में फॉल करते हो तो आपको उसके ऊपर भी आरसीएम वाले पे भी प्रोपोर्शनेट लगेगा। सो इक्वल ट्रीटमेंट फॉर आरसीएम पेड एंड नॉन आरसीएम डायरेक्ट पेमेंट। हाँ हेलो। यस सर। Sorry, sir, let me check this once in detail. Then I will get back to you for this. Let me check in detail. Any other query, sir? In case of composition dealer under service category, whether RCM and legal fees is liable to be paid? If yes, at what rate? Sir, composition dealer for all purposes is considered to be, Anjali ji, composition dealer for all purposes is considered to be a registered dealer. So if he is paying the legal fees, answer is yes. Legal fees, the rate applicable is 18% as on normal legal services. Hence, but उसको ITC भी नहीं मिलेगा, उसको आईटीसी भी नहीं मिलेगा बिकॉज वो कॉम्पोजिशन डीलर कैटेगरी में है। For it is same for the same being continued for the hotel services, for the catering services. Sir, Anjali ji is request. She has raised her hand, I guess. तो मैडम, हेलो Yeah, मैडम, madam, go ahead. मिलेगा नहीं क्या? You will not be able to take the Theatre? credit. I already told you. अच्छा, तो इट्स अ कॉस्ट टू द कंपनी, मतलब या जो भी है क्लाइंट को। अंजलि जी, सिर्फ जो रेंटल सर्विसेज है ना, उस केस में एग्जेम्पशन दिया गया है कॉम्पोजिशन डीलर को, जो आरसीएम अभी 9 अक्टूबर 2024 से लगा था। उस केस में सिर्फ कॉम्पोजिशन डीलर को एग्जेम्पशन दिया गया है, लीगल सर्विसेज में एग्जेम्पशन नहीं है कॉम्पोजिशन डीलर को। सो यू आर सपोज्ड टू पे एंड आईटीसी विल नॉट बी एलिजिबल। हमने 6% का लिया है सर्विस कैटेगरी का, कम 6% सर्विस कैटेगरी का लिया है, 6% वाला सर्विस कैटेगरी में जो कंपोजिशन सर्विस है। यस 10 to A की बात कर रही हैं आप। हाँ Yes, हाँ 10 to A में भी है। सो यू आर अ कॉम्पोजिशन डीलर, सो लीगल सर्विसेज के केस में आरसीएम लगेगा। लगेगा ना? ओके, तो आई थॉट कि 6% है तो 6% ही लगेगा। सॉरी, मुझे लगा कि 6% एप्लीकेबल है तो वो 6% से पे करना है क्या आरसीएम भी? नो हाँ नो नो, दैट विल बी पेबल एट 18%। ओके, बिकॉज थैंक्स। आपका 6% का जो रेट है वो आपकी आउटपुट सर्विस पे, आउटपुट सर्विस के लिए है। इनपुट सर्विस लीगल सर्विस का रेट लगेगा विच इज 18%। ओके, तो इट्स अ ह्यूज कॉस्ट फॉर कंपनी, उनका लिटिगेशन भी बहुत चल रहा है तो सर्टेनली। हाँ ओके, थैंक्स मैडम, थैंक यू। हाँ पूछ। हेलो मैम। हेलो मैम, एक आपकी क्वेरी है मेरा। आवाज आ रहा है। हाँ मैम, मेरा एक क्वेरी है। मुझे जेम से परचेस ऑर्डर मिलता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ओनली। उसमें लिखा रहता है कि सिंगल लाइन आइटम टेस्टिंग एंड कमीशनिंग एंड सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और उसका ऑर्डर वैल्यू रहता है एग्जाम्पल के लिए 1 करोड़, ऑल इंक्लूसिव प्राइस करके लिख के देते हैं। अभी जब मैं मटेरियल उसका उसका जो मटेरियल में परचेस करता हूँ वो डिफरेंट टैक्स वेराइटीज रहता है, जैसे कि 18% भी है, 28 भी है, 12 भी है। बट कस्टमर को जब मुझे बिल करने का रहता है वहां पर
तो वो बोलते हैं मुझे सिंगल लाइन आइटम विथ 18% ही दिखाओ। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, हाँ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 18%। हाँ, बट नहीं समझा सर, मैडम बोलिए फिर से। आपका इनपुट मल्टीपल रेट से आएगा। नाउ 18%, ब्रिक्स वगैरह होंगी तो 12 और 6%, और सीमेंट 18%, वेरियस सर्विसेज 18%, लेकिन आपका आउटपुट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा विच इज 18%। 18%। मैम अभी इससे पहले अपना जो एलईडी डिस्प्लेस होता था वो 28% में आता था। ओके, अभी उस टाइम में हम लोग 28% भी इन्वॉल्व था, 18% भी इन्वॉल्व था, तो उस Yes. टाइम कौन सा फिर टैक्स रेट में जाना चाहिए था? सर अगर आपकी आउटपुट सर्विस जो है वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है, जहां आप लेबर एलिमेंट भी दे रहे हो और जहां आप मटेरियल भी दे रहे हो, दैट इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वो 18% पर ही टैक्सेबल है। चाहे इवन दी उसमें आपका लोअर रेट पे मैं परचेस किया तो भी 5% पे आता है। 18% पे ही होगा क्या मैम? सॉरी, मेरा परचेस इसमें 12 तो एंड 18 है। 18, 28, 12, 5 किसी भी रेट पे आ सकते हैं, बट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में आपका आउटपुट जो है वो सिर्फ 18% पे जाएगा। और अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो तो आप स्केड्यूल की एंट्री 6A में जाते थे, उस केस में रिफंड एलिजिबल था, इन्वर्टेड ड्यूटी। हाँ, अगर कंस्ट्रक्शन में जाओ 5B में तो रिफंड रिस्ट्रिक्टेड है, बट 6A में रिफंड एलिजिबल था। आपका आउटपुट 18% पर ही जाना था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू। 18%। Madam, one more question is in chat. Okay. A standalone restaurant is paying rent of the premises. The owner of premises is not registered. Okay, तो RCM लग रहा होगा. Hence, the restaurant owner is paying 18% RCM. Sir, आपका रेस्टोरेंट अगर तो कॉम्पोजिशन में है तो वो इस आरसीएम से बच सकता है, क्योंकि रेट तो दोनों में ही 5% है विदाउट आईटीसी, चाहे कॉम्पोजिशन में हो चाहे नॉन कॉम्पोजिशन में हो, तो वो बच सकता है। बट अगर वो कॉम्पोजिशन में नहीं है तो उसको 18% आरसीएम देना पड़ेगा और उसका उसे आईटीसी भी नहीं मिलेगा। सो जो कमर्शियल प्रीमाइसेस रेंटिंग है उसके ऊपर कॉम्पोजिशन वालों को एग्जेम्पशन दी गई है। सो अगर आपका रेस्टोरेंट 1.5 करोड़ तक का है, मतलब उसका टर्नओवर, तो बेटर यू टेक इट टू इनटू कॉम्पोजिशन, तो 18% बच जाएगा। बट अगर वो 1.5 करोड़ से ऊपर है तो आप 5% विदाउट आईटीसी में रहेंगे, आपको आरसीएम लगेगा और उसके बाद उसका आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। रेगुलर डीलर है ना सर? ओके, आप कहना चाहते हैं कि वो नहीं जा सकता, कैन नॉट गो फॉर कॉम्पोजिशन, सो यस, RCM will become applicable and it is a cost. It will not be allowed to be taken as IT. I think सब क्वेरी सॉल्व हो गया है, कोई बाकी नहीं है। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके, अंजलि मैम प्लीज आस्क। अनम्यूट करो, अनम्यूट। या यू आर अनम्यूटेड मैडम, प्लीज आस्क। मैडम एक खाली कंफर्म करना था कि जैसे एक क्लाइंट है, उनका रेंटल इनकम मतलब एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और बाकी का 2 कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो पकड़ के 20 लाख के ऊपर जा रहा है, तो वो केस में उनको मतलब व्हाट यू विल सजेस्ट कि वी शुड ऑप्ट फॉर अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन वॉलंटरीली, कि वी शुड वेट फॉर ओनली कमर्शियल रेंट टू बी गो अप टू 20 lakhs? मैम आप ये कहना चाहती हैं 2 उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं और एक रेसिडेंशियल है फिलहाल। सॉरी, एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसका रेंट मिला के 20 लाख के ऊपर जा रहा है। ओके, अगर हम लोग रेसिडेंशियल एक्सक्लूड करेंगे तो 20 लाख के नीचे है। मैम रेजिडेंशियल रेंट इज एग्जेम्प्ट ना? हाँ, तो वो मतलब तो हाँ मैम वैसे भी एग्जेम्पशन जो 20 लाख की लिमिट है वो एग्जेम्प्ट सप्लाई ऐड करके देखी जाती है।
It is, please note down, Section 2, Clause 6, turnover, the limit for service provider is 20 lakhs for that. That is taken by adding the exempt supply. Okay. Right? मतलब हमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा फिर वो केस में वो डीलर का. पेमेंट सिर्फ कमर्शियल रेंट पे होगा. ओके. और वो एग्जाम सप्लाई अलग से दिखाना पड़ेगा लेके. वो एग्जाम सप्लाई में जाएगा, एग्जाम सप्लाई ऐड होके लिमिट देखी जाएगी. ओके ओके ओके. थैंक्स मैडम. ओके. Madam, last question in the chat box. Asking Our Vice if President has asked you. assessee on legal services is need to reverse proportion. I have already answered Arvind ji for the same. आप ये कहना चाहते हैं लॉजिंग एंड बोर्डिंग में है 7500 से कम उसका रूम है और वो लीगल सर्विसेज पे आरसीएम पे कर रहा है तो उसका भी क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा सर. I have already answered this query earlier. Right. Thank you, madam, for answering all the questions. I think there is no more questions. Thank you, ma'am. Now I propose officially propose a vote of thanks to Aanchal ma'am. It is a pride privilege to give a well-deserved vote of thanks to today's speaker, Aanchal Kapoor madam, for covering all the amendments applicable from September in her unique style, which make everyone understand the integrities of the changes. Thank you, ma'am. I thank madam for your time and valuable insight on all the changes and making the webinar lively. Thank you, ma'am. My pleasure. Normally webinar one way हो जाता है, लेकिन ये बार two way हो रहा. Thank you, ma'am, for that also. My I pleasure. thank Bharat Bhai for coordinating with the speaker and making this webinar a reality. Thank you, past president sir. Now I thank Vijay Keval Ramani sir for providing platform and helping in smooth conducting of the webinar. Thank you, past president sir. At the end, I thank all the participants for taking out their time and making this webinar a grand success. Thank you everyone for your cooperation and participation. Thank you, ma'am. Thank you once again, one and all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Achal. Thanks for keeping your word. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Vijay bhai, you can now close this webinar, live streaming, so that whosoever want to chit chat, they can chit chat. Hello, Vijay bhai, are you there? Let me check with Vijay bhai. अरविंद, लाइव स्ट्रीमिंग चालू है क्या अभी भी? चालू है, चालू है. विजय को कॉल करना पड़ेगा, आई थिंक सो. मैं कॉल कर रहा हूँ. He is not answering. I think so we should all exit, तो अपने आप बंद हो जाएगा स्ट्रीमिंग. Yes, yes. स्ट्रीमिंग बंद नहीं होगा ना, वो तो जब तक वहां से बंद नहीं करेंगे तब तक. विजय भाई को करना है, उसको ही करना पड़ेगा. एक सेकंड ट्राई. हाँ, विजय. अभी
भाई फोन नहीं उठा रहे, रिंग जा रहा है, फोन नहीं उठा रहे। फोन तो जा रहे लेकिन ही इज नॉट पिकिंग, सम ही मे बी समवेयर। आपने भी ट्राई किया क्या भरत भाई? हाँ चालू है मेरा फोन, रिंग बज रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग विजय